Thank you, Ravi. Thank you. Please admit all. And Meenuji, namaskar. Welcome to India from Singapore all the way. Namaskar, Jitendra. Nice to be here with you all. How's the weather in Singapore? Again, I'm very either heat वहां पर गर्म होगा काफी अभी. गर्म तक बारिश हो जाती है. Yes, we have to mute all once. The weather in Singapore must be गर्म होगा काफी. हाँ, गर्म होती है. शाम तक बारिश हो जाती है तो या यहाँ दो ही मौसम होते हैं, या तो गर्मी या बारिश. Yeah, I know it's a beautiful place to go. In fact, Singapore नाम से काफी कुछ हलचल होने लग जाता है मन में. Okay, today we are on a very intriguing topic, I should say, something which may invite a lot of taboos, may invite a lot of attention. So we want to discuss all of them. Before that, may I request, are you there? Please welcome our guest of honor for today. Yes, please. Everyone, as we know, today's topic is very different and it's a new topic. So it's really a topic of open discussion, despite the fact being half the population experiences it or is about to experience. So today we have this opportunity to discuss this new subject and understand it in more details. So we have on board with us today Mrs. Meenu Agarwal, a clinical dietitian and nutritionist based in Singapore. She has been providing nutrition advisory services globally. Born and brought up in Calcutta, has a strong Calcutta connection. Her daughter plays professional cricket for Team Bengal. She advises clients globally on how to improve health, reverse medical conditions with current nutrition and lifestyle choices, as it plays a major role in managing today's health issues. Coming to menopause, since there's a lot of mystery and misinformation about it, so we have here to break certain myths and get a deep insight into the topic. As we know, our women folk experiences it in our house, but not much discussion hovers around it. It's a natural human body transformation which every woman goes through. A completely new subject, and hence, let all get our questions answered today on this subject. Over to you, Papa JC. Thank you, Kavita. बड़ा अच्छा बनाते हैं. That is why I keep taking your assistance all the time, because the way you explain it, it makes my life very easy. मैं तो इतना समझा बुझा के पढ़ भी नहीं सकता, ना बोल पाता हूँ. So, Meenu ji, before we start with the topic of today, I must tell you that we have a very interesting topic lined up for tomorrow. It's on parenting, and the topic is all about Ma and Pa, as I've said earlier also. Parenting is a very different kind of an issue, जिसके solutions के लिए हर बार एक solution may not match with the other solution. Problem same हो सकती है different age group में, तो उसका solution भी different होगा. और ये नरेंद्र जी हमारे already आ चुके हैं पहले, so we are really looking forward to that session also for tomorrow. And in the meantime, today I must share something very interesting happened. परसों की बात है that I met up with my friends, rather I interacted with my friend's son, Ansh. So he said that let's start something for our age group. So I said, why not do it? So I'm talking about teenagers now. There is a separate group of teenagers who are it is expanding. The group is now expanding, and we are trying to work out different types of topics for them. Very different, and they are almost so they talk so differently, and it's so interesting to understand them and what they want. So their topics are all about maybe PUBG players, sports players, and so many others. Even for they want gymmers. So इनका जो concept ही एकदम different है. So I am very proudly saying that we have been able to stretch ourselves into that age category also. And if you have teenagers in your house, please send me a request. I will ask Ansh to add him to the group where we are interacting and creating more information. Sure, I'll Today do. I have. Yeah, you have. So you must send me a request. I'll ask Ansh to add her. Okay. In between, I also interacted with one of the COVID patients.
So I'm trying to bring in a COVID patient with a doctor to interact. He's coming all the way from Delhi. So he will tell us all about the difficulties that he has faced and what are the fears that we can avoid. We can actually, the fears are not called for. So that is also in line. So we have a lot of things lined up. We will do one by one as the times come and things change for us in Calcutta. Now, coming to your topic. How would you like to start this topic? You would want to start with a presentation, which you had said that you want to do a presentation. So would you straight away start with the presentation, or you want to say something about it and then we move on to presentation? We can start with the presentation, and then for after the presentation, we are open to discuss. Either it is a question answers or whatever way you want, we can communicate. बिल्कुल ठीक है. आप प्लीज आप स्टार्ट कर लीजिए. इनफैक्ट हमारी एक गुजारिश है आपसे कि थोड़ा आप हमारी शुद्ध भाषा हिंदी में बोलेंगे तो ज्यादा लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे और समझेंगे भी. शुद्ध भाषा हिंदी में ही बात करेंगे, कोशिश करेंगे जितना कर सकती हूँ. कहीं अगर मैं गलती करूँ तो मुझे टोक दीजिएगा और बता दीजिएगा कि हम बताइए. नहीं, मेरी मजाल थोड़ी है आपको टोकने की. पूरी कोशिश करेंगे हिंदी में. इनफैक्ट अगर कहीं कुछ लगे कि बांग्ला भी जरूरत है तो वो भी बोल सकती हूँ. तो उसके लिए नहीं, आप हिंदी और इंग्लिश रखिए ना. बेस्ट है, हिंदी और इंग्लिश रखिए. Okay. So thank you for giving me opportunity. Thank you everybody for joining today's talk. As Kavita has already introduced, the topic is about menopause. I would like to share the screen, PowerPoint presentation, जिसके थ्रू मैं बात करूंगी कि menopause है क्या और क्यों हम इसके बारे में खुले में बात नहीं करते. जब हम बात करते क्यों दबी आवाज आती है घर में. क्यों घर के मेल मेंबर्स तो बिल्कुल अनभिज्ञ होते हैं. वो जानते हैं कि ये स्टेज है, कहीं कुछ प्रॉब्लम, बट है क्या प्रॉब्लम, कैसी सपोर्ट चाहिए होती है. द फीमेल्स, उनकी लाइफ की जो वुमेन है, चाहे वो उनकी माँ हो, बहन हो या बीवी हो, किस स्टेज से गुजर रही है और कैसा सपोर्ट उन्हें चाहिए. अगर वो उस तकलीफ को समझेंगे ही नहीं तो सपोर्ट क्या प्रोवाइड करेंगे. जैसा कि मुझे याद है जितिन जी से भी जब मैंने बात की थी मेनोपॉज के बारे में, तो उनका भी अप्रोच यही था. नॉर्मली हर किसी का होता है यही अप्रोच. इट्स अ वुमेन्स टॉपिक, इट्स अ वुमेन्स टॉपिक. नो, इट्स नॉट. It's an open topic which men and women both need to understand equally. One, women need to understand how to prepare for it. We women prepare for pregnancy these days. Earlier तो वो भी नहीं होता था. अभी pregnancy के लिए body prepare करते हैं, लेकिन menopause के लिए नहीं करते. Men, उनको पता ही नहीं होता कि complications क्या है और क्या जरूरतें हैं, तो वो support कहीं का करेंगे. तो हमारी कोशिश है कि awareness जितनी ज्यादा फैला सकें. और आज के दिन तो मुझे नहीं लगता कि ये टॉपिक बिल्कुल भी टैबू होना चाहिए या ऐसा कोई भी विषय है इसमें जिसके बारे में हम डिस्कस ना करें, बल्कि ये तो ओपन फोरम में होना चाहिए. एज अ टीनेजर हमारे बच्चों को पता होना चाहिए कि वो अपने पेरेंट्स को सपोर्ट कर सके. सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक, हाउ टू मैनेज मेनोपॉज विद कॉन्फिडेंस. सो मेरे खुद के एक्सपीरियंस बताते हैं, जो मेरे इतने सालों के जो न्यूट्रिशनल डाइटेटिक काउंसलिंग के एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है मोस्ट ऑफ द वुमेन who are struggling with menopause, उनको ये पता ही नहीं होता कि हमारी बॉडी को हमें पहले से प्रिपेयर करना चाहिए. We must prepare our body to face what are the consequences and after effects of menopause, so that our body does not suffer any ill consequences of it. It is not a disease. It is just a natural human process through which every woman in this world has to go through it. चाहे हम बात करके करें या छुप के अकेले में सफर करें, चॉइस हमारी है. बट ये काफी हो गया, अब काफी साल हो बीत चुके हैं, हम 21st सेंचुरी की बात कर रहे हैं. तो दिस इज समथिंग वी नीड टू डिस्कस. वी शुड डिस्कस अमंग women, we should discuss among friends, with doctors, your healthcare providers, and definitely with your partner, so that they can understand and support you in your tough time. So we must go through it because this is nothing to hide it. I will share a simple data. ये chart बताती है 84% of the women, they say they are those who are suffering with menopause or those who have suffered with menopause. They say out of them 12% says it interfere in their day-to-day life. It is a big deal because उनके life में बहुत ज़्यादा changes आए जिससे उनके normal life पे बहुत impact होता है. Out of those 84%, 50% of the women says hot flushes are the big problem.
42% has admitted night sweats are threatening. 38% says vaginal dryness is a real big problem for them. 42% says we never discuss menopause with any health provider. मतलब आज इतनी women, हर women, if we say 60% of the population of the globe is women, and we know this is a condition with each and every woman, उसमें अगर 42% अपने healthcare provider से discuss ही नहीं करती, solution कहाँ मिलेगा? Only 1 out of 5 women receives a referral to a menopausal specialist. Most of the Indian women तो हम discuss ही नहीं करते, घर में ही नहीं करते, तो बाहर तो बहुत बड़ी बात है. Surveys indicate 75% of women are not prepared for menopause. But we must understand women should prepare their body for menopause. What is menopause? First, menopause is a stoppage of menstruation. यहाँ उनका menstrual life cycle खत्म होता है, no more periods. But this also indicates end of reproductive life. मतलब अब और reproductive life नहीं है. No more children bearing capacity, no more child bearing capacity. और ये मेनोपॉज किस उम्र में होता है? लगभग 45 से 55 की उम्र के बीच में, जिसको हम एवरेजली बोलते हैं कि लगभग 50-51 साल की उम्र में मेनोपॉज साधारणतः हो जाता है. कुछ एक्सेप्शन होते हैं, जिनका 45 से पहले होता है उनको अर्ली मेनोपॉज बोलते हैं, और जिनका 55 के बाद होता है उनको लेट मेनोपॉज बोलते हैं. होता क्या है, हमारे शरीर के जो हार्मोन्स है, स्पेशली जो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो हमारे फीमेल हार्मोन्स हैं, ये बनना बंद हो जाते हैं. हमारी ओवरीज के अंदर जो अंडे बनते हैं, एग्स का फॉर्मेशन होता है, वो बनना बंद हो जाता है. सो दैट डिनोट्स एंड ऑफ आवर रिप्रोडक्टिव फेज. एक छोटा सा ग्राफ शेयर कर रही हूँ जिससे आप समझ सको ये जो फेज ऑफ मेनोपॉज के जनरली 3 फेज होते हैं. एक होता है पेरीमेनोपॉज. यूं तो हम 4 स्टेज कहते हैं. She is speaking specially for men on menopause for men. So मेनोपॉज के जो 4 फेज होते हैं, 1 फेज इज द नॉर्मल लाइफ साइकिल बिफोर दिस 45 इयर्स. 45 के पहले की जो फीमेल लाइफ है, दैट इज प्री मेनोपॉज. इसके बाद शुरू होता है पेरीमेनोपॉज, जो कि शुरू होता है 45 साल की उम्र से. ये ऑरेंज पार्ट आप ग्राफ में देख रहे हैं, यहाँ पे हमारा पीरियडिक फेज है, लेकिन जैसे ऑरेंज से येलो की तरफ ट्रांसफर हो रहा है, इफ यू कैन सी दिस डॉटेड लाइन, दिस इज द साइन ऑफ लास्ट पीरियड, which is called end of perimenopausal phase. If you see this left to right, this is perimenopause. इस लास्ट पीरियड के बाद हमें वेट करना होता है 12 महीने. मतलब अगर पीरियड्स आर नॉट ऑन विद इन अ स्पैन ऑफ 1 year, we call it menopause set in. That is the average age. ये उम्र होती है 50 से 51 साल ऑन एन एवरेज. किसी की 2-4 साल पहले, किसी की 2-4 साल बाद. लगभग 10 साल का रेंज है 45 से 55. मेनोपॉज सेट होने के बाद और मेनोपॉज नहीं होगा उसके बाद, मतलब पीरियड्स नहीं होंगे, उसके बाद का स्टेज है 3rd स्टेज, विच वी कॉल पोस्ट मेनोपॉजल स्टेज. सो प्रॉब्लम्स हमें आती हैं, ये जो ऑरेंज से जो येलो का कन्वर्शन स्टेज है, ये सबसे ज्यादा क्रिटिकल होता है, क्योंकि अगर हमारा शरीर इसके लिए रेडी नहीं है, तैयार नहीं है, अगर हमें अवेयरनेस नहीं है, तो सडन चेंजेस जो हमारी बॉडी में आएंगे, हम उनसे घबरा जाते हैं. हमें पता ही नहीं होता कि उनके साथ डील कैसे करनी है. सो पहले ये समझिए कि इसके इम्पैक्ट क्या होते हैं. मेनोपॉज होने से क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं फीमेल बॉडी में, क्या तकलीफें आ रही हैं उसको. पहली तो ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन कम होने से हमारे शरीर की बनावट में बहुत चेंज आती है. एक वजन बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने लग जाता है. अब कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो क्या होगा, हार्ट डिजीज होने का या स्ट्रोक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. साथ ही साथ मेनोपॉज होना, ईस्ट्रोजन बंद होना. ईस्ट्रोजन बंद हो जाने से हमारी हड्डियों में जो बोन मिनरल डेंसिटी है वो लीच आउट होने लगती है. मतलब कि हड्डियां बहुत ही कमजोर और फजाइल हो जाती है, जिसको हम कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस. ऑस्टियोपोरोसिस सेट इन होता है. अगर आपने नोटिस किया होगा आपकी सोसाइटी में जो कि 55 या 60 साल की उम्र की महिलाएं हैं, वो जरा सा भी इधर उधर ट्विस्ट करती है या हल्का सा हड्डी में मोच आ गई, उनकी फ्रैक्चर हो जाते हैं. बहुत कॉमन होता है, जो कि हिप फ्रैक्चर, पैर का एंकल फ्रैक्चर बहुत कॉमन है महिलाओं में. दिस इज बिकॉज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस. सो कैल्शियम का लॉस, ये ध्यान रखें कि जिनको मेनोपॉज हो रहा है या जस्ट सेट इन हुआ है, आने वाले फर्स्ट 5 ईयर, पहले 5 साल कैल्शियम डाइट में बहुत हाई होनी चाहिए. प्लस कैल्शियम ऑन टॉप एज सप्लीमेंट भी उनको लेना चाहिए. क्यों? क्योंकि कैल्शियम का लॉस सबसे ज्यादा होता है हमारी हड्डियों से फर्स्ट 5 ईयर्स ऑफ मेनोपॉज. तो ध्यान रखें कि हमारी डाइट कैल्शियम से रिच होनी चाहिए. खाना
प्लस सप्लीमेंट। इसके अलावा क्या तकलीफें होती है? हॉट फ्लैशेस, नाइट स्वेट। ये हॉट फ्लैशेस, नाइट स्वेट क्या है? सुना तो बहुत है, कभी एक्सपीरियंस किया? जिन्होंने किया वो समझते हैं क्या प्रॉब्लम है। पूरे परिवार के साथ आप आराम से एक वेल एयर कंडीशन रूम में बैठे हैं, सब आराम से बैठे, अचानक आप पूरे पसीने से लगभग नहा गए। दिस इज हॉट फ्लैश। यू फील पैल्पिटेशन, अंदर से घबराहट होने लगती है कि क्या है, कहीं कुछ अलग तो नहीं हो रहा है। क्यों होता है ये हॉट फ्लैश? वी नीड टू अंडरस्टैंड। जब ये ईस्ट्रोजन कम हो जाता है, हमारे ब्रेन में एक ऑर्गन है, इंडोक्राइन ऑर्गन है, जिसको बोलते हैं हम हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को ईस्ट्रोजन एग्रीवेट करता है। हाइपोथैलेमस क्या है? ये हमारे शरीर के तापमान को, टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। जो हमारी हीट सेंसिटिविटी या कोल्ड सेंसिटिविटी है उसको रेगुलेट करता है। अब चूंकि ईस्ट्रोजन कम है तो वो एग्रीवेट नहीं कर पाता हाइपोथैलेमस को, तो हम टेम्परेचर सेंसिटिविटी खो देते हैं, तो हमारा बॉडी ढंग से, हमारी बॉडी रिस्पॉन्स नहीं करती टेम्परेचर के हिसाब से, तो अचानक ठंडे रूम में भी हमें हीट फील होती है एंड हम हॉट फ्लैशेस हो जाते हैं। सो वी आर sweating in the midst of a well ventilated room. नाइट फ्लैशेस क्या है? नाइट स्वेट्स भी हॉट फ्लैश जैसा ही है, बट ये होता है कि गहरी नींद में आप सो रहे हैं, आपका पार्टनर भी सो रहा है, अच्छा खासा ठंडा रूम है, अचानक गहरी नींद में आपकी आंख खुलती है, आप घबराए हुए हो। क्यों? क्योंकि यू आर टोटली स्वेट, यू आर वेट। दिस इज नाइट स्वेट। अगर आपके पार्टनर आपको समझेगा ही नहीं कि क्या, किस दौरान आप कितनी तकलीफें फेस कर रहे हो, यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पार्टनर को नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए और हमें चाहिए बहुत ठंडा, और स्पेशली ड्यूरिंग मेनोपॉजल फेज women really want real aircon or real chilling room. Why? Because she goes through all these steps. So we need to understand how to adjust and manage. सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा ईस्ट्रोजन कम हो जाने से हमारी जो शरीर के वेजिनल एंड यूरेथ्रा की और यूरिनरी ब्लैडर की जो लाइनिंग है वो बहुत पतली हो जाती है और बहुत सूख जाती है, ड्राई हो जाती है और इलास्टिसिटी कम हो जाती है, जिससे हमारी यूरिन पैसेज बिकम्स वेरी फ्रीक्वेंट। मतलब हमें बार बार हर थोड़ी देर के बाद यूरिन डिस्पोज करने के लिए टॉयलेट फ्रीक्वेंट विजिट करनी पड़ती है। प्लस हमारे चांसेस ऑफ यूटीआईज होने के बहुत हाई हो जाते हैं। सो फ्रीक्वेंट यूरिनरी इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। सो इस दौरान आपको ध्यान रखना है कि हमारी डाइट में विटामिन सी रिच फूड ज्यादा हो, जिससे हमारी कोलाजन एंड इलास्टिन के क्वांटिटी बढ़े। प्लस हमारे पानी का इंटेक बहुत ज्यादा होना चाहिए, जिससे कि कोई भी इन्फेक्शन या कोई भी वायरल इन्फेक्शन हो रहा है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है, स्पेशली बैक्टीरियल इन्फेक्शन ड्यूरिंग यूरिन यूटीआईज, वो फ्लश आउट हो सके। प्लस हमारी जो वजाइनल या यूरिनरी ब्लैडर की जो पीएच लेवल है उसको हम बेटर मैनेज कर पाए, जिससे कि यूटीआईज रुके। तो पानी का इंटेक बढ़ाना है। प्लस सिर्फ यही नहीं, इससे ही सिर्फ नहीं रुकेगा, टॉपिकल एस्ट्रोजन के सप्लीमेंट आते हैं जो कि ट्यूब या क्रीम के तौर पे भी लगाए जाते हैं, जिससे कि हमारी वजाइनल लाइनिंग या इनर लाइनिंग जो होती है उसको ठीक कर सके, उसकी इलास्टिसिटी को बेटर कर सके। सो दे आर रेमेडीज व्हिच वी विल डिस्कस एज वी गो थ्रू इट। इसके अलावा डाइजेशन बिकम्स अ बिग प्रॉब्लम। कॉन्स्टिपेशन यूजुअली सेट्स इन, एसिडिटी बढ़ती है, इनडाइजेशन बढ़ता है। Loss in sexual activity also is often seen in during menopause and even after post menopause. Joint pain is also become a common issue. स्किन, हमारी स्किन से इलास्टिसिटी हट जाती है, स्किन बहुत पतली और फाइन हो जाती है। क्यों? क्योंकि इलास्टिन एंड कोलाजन दोनों कम हो जाता है। सो स्किन बिकम्स लूज एंड सॉगी होने लगती है, सो इससे ब्यूटी कम होने लगती है। दैट अगेन बिकम्स अ कंसर्न फॉर मेनी वुमेन एंड मेन एज वेल। मूड स्विंग होते हैं, वेट गेन होता है तो वुमेन का कॉन्फिडेंस कम होने लगता है कि सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ पहले जैसा, कोशिश कर रही हूँ लाइफस्टाइल में, बट स्टिल मेरा वेट कंट्रोल नहीं आ रहा। नाउ with weight gain, you know such a big issue, so you don't look the same what you were, your mood swings becomes normal कि आपके हर वक्त, अभी अचानक आप ठीक है, अचानक चिड़चिड़ाहट, इरिटेशन हो रही है, डिप्रेशन, एंजाइटी होने लगती है, आपके बालों की क्वालिटी खराब होती है, they become coarse and thin and dry hair. So overall your confidence, which a woman talk about, is about her look, her hair, everything about her composition, her posture, everything is lost during this time. एंड प्लस इसके साथ ऑन टॉप हेयर लॉस होना शुरू हो जाता है बिकॉज ऑफ लो एस्ट्रोजन लेवल। दीज आर ऑल सिम्टम्स एंड इम्पैक्ट्स ऑफ मेनोपॉज। सो कॉन्फिडेंस इज ऑल गॉन, मतलब कॉन्फिडेंस की पूरे वाट लग जाती है। अभी उसको ठीक कैसे करना है, उसको पहले तो समझना है कि इन चीजों से हम उबर सकते हैं धीरे धीरे। सबके साथ होता है, वो अकेली नहीं है, इसमें हर वुमेन के साथ होगा। एंड साथ में योर पार्टनर, योर फैमिली मेंबर नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट द लेडी ऑफ द हाउस इज गोइंग थ्रू टू सपोर्ट हर mentally. We need to understand it's just a phase. Just like pregnancy, we must
prepare our body for menopause. क्यों? क्योंकि इसके जो कुछ consequences हैं जो कि अगर हम पहले से जानते हैं तो हम अपनी body को pre-prepare करें. Like better the storehouse of nutrients in your body, better the quality of your life post menopause will be. क्योंकि तब absorption of nutrients हमारी body में कम हो जाता है. So let's keep talking in our home with the ladies of the house, whether we are men or women. Why I said men should know about it. They must understand mood swings are not aimed towards the men. These are just the temporary phase of her life. And of course, you need to understand this is not a phase of 1 day, 2 day, or few months. It can be a phase from 7 to 10 years. As a partner, when you have committed to live with her, it's a commitment. In this crisis stage also, you need to be with her. So you must treat her, pamper her to make her load lighter. You need to understand her sex drive is changing. Talk to her respectfully and approach her as a couple. Her confidence is really boosted. Pamper her. Discharge. She is having heavy discharges, heavy flow. She can be having a sore breast. She is wetting her pajamas during night sweat. She is just all sweat. You are sleeping in this cold, comfortable room. You must and you should listen to her. She needs your support mentally. It's very tough as women when we listen to all this. It is so tough. See, tough just in listening. Just imagine once when a woman goes through it. And also you need to understand not every woman goes through equal symptoms. There can be highs and lows. There can be many or less symptoms. Every individual woman is different, but some or other consequences are almost going to be same. It is different for every woman, but we must understand this is a tough time which the woman of the house is going through. Let's be empathetic, talk to her, discuss about it. The last one is you need to understand, keep up the romance, don't shun her. She is your partner. What are the major consequences apart from all these impacts is the health condition wherein diabetes is a very common issue post-menopausal condition where women are more prone to getting diabetes. Why? Because changes in hormone level leads to fluctuation in blood sugar levels. If blood sugar gets out of control, high chances of diabetes. Weight gain is also common during menopause, which can also lead to diabetes. And again, because of these hot flushes and night sweats and anxiety and depression, sleeplessness or insomnia become a normal condition. And if the woman is also suffering with sleep issues, her fluctuation in blood sugar level will be very common. And that can also lead to diabetes. So we must address this. We must ensure that we treat this condition. We should discuss and let her soothe, let her learn to meditate or to soothe out her anxiety. Not only this, with onset of menopause, women are more prone to heart diseases also. Why? Because decrease in estrogen level can lead to clogging in our arteries, which can give rise to heart disease. Your blood pressure level goes up. Bad cholesterol like LDL can goes up, and good cholesterol, the thing is, good cholesterol hardly goes up during this phase. Either it will remain the same or it will go down. So that also increases the chance of getting heart diseases. And not even this, triglycerides also goes up. So ensure women who are going through menopause must address diabetes and heart disease issues. Ensure that your weight is under control, your body is fit. Now, how do we deal with this hot flushes, weight gain, osteoporosis, etc.? For hot flushes, we cannot do too much. Some few things we can do, like avoid having spicy food, avoid having caffeine or liquor. If you are a smoker, please stop smoking. Try to drink plenty of water, keep yourself well hydrated, and dress in light and comfortable clothing. Weight gain is normal, but yes, you have to be more active and more vigilant towards having your meal balanced and do regular exercises. Especially weight-bearing exercises will help you to prevent your bones from getting osteoporosis. Your bone health will improve if we do at least 2 to 3 days of strength training or weight-bearing exercises in a week. Now, to avoid osteoporosis, our diet should be rich in calcium, magnesium, vitamin D. These are the vitamins which will help you restore your bone density. And to decrease vaginal elasticity, to improve the decreased vaginal elasticity, we must have vitamin E rich food.
And also we should do casual exercises, which will help improving your UTIs and frequent urination. So casual exercises are very easy, can be done by sitting also. Even the females who are sitting right now, they can just think of as if you need to go for peeing and you are not allowed to, or the toilet is not empty. So you have to wait. Just that sensation that I need to pee, but I am not allowed to. That is what the casual exercise is. That feeling, you can sit and feel that immediately your casual exercise, your casual part will get activated. So try doing that at least 2 to 3 times every day. That will improve your urinal activity. That will improve your the area around the vagina. The bones will get properly formed, and you will get feel relief from it. Whether you are in menopausal age or not, you must do regular casual exercise. Okay, some females really faces a lot of hot flushes for prolonged time, and they are not very comfortable. Anxiety and depression starts in, and palpitation also for them. And also those who have seen, gone through this early menopause because of whatever reason, there are certain hormone replacement therapy, which is called HRT, is also available, which is pretty safe. Not like earlier people have a theory that these are not safe, have consequences. No, HRT is pretty safe. HRT can be of 3 types. It can be had in oral, like in pill form, vaginally as a cream form, transdermal as a patch form on your skin. It replaces female hormone, which was supposed to be produced by ovaries. Since your ovaries are no more producing it, additional external hormone replacement is done. So this is 3 ways we can do. This will help you minimizing your menopausal symptom. This can be used during your perimenopause, menopause, and also after menopause stage. You must speak to your doctors, your healthcare provider, to understand if you are in the right category of women to go through this HRT. Patch, the skin on the top one, is associated with lower risk of blood clots and strokes. And also, there is very lower risk of high triglycerides as compared to oral tablets. But you should always speak to your doctor so that they can suggest you what sort of hormone replacement therapy they should be giving you, so that you can maintain your quality of life post menopause as well. This HRT also helps in preventing in osteoporosis. So I have just suggested this. These are the condition, and who are the general condition, safe condition for HRT replacement: those who have premature menopause or premature ovarian failure, or any radiation exposure, or surgically, if somebody's ovaries are removed, they are very safe and easy candidate for HRT treatment. I would like to focus this one slide particularly. Just need to know everybody what is osteoporosis. In the left side, if you middle of the side where I am showing the cursor, is the normal bone matrix. Our bone is so dense, the bone mineral density is so dense. But with the onset of osteoporosis, it becomes so netty, so fragile. With a little bit of jerk, your bone can get fractured, your hip bone can get cracks. So ensure we must avoid it. And to avoid osteoporosis, the major ingredients, the nutrients are calcium, phosphorus, magnesium, vitamin D3, and vitamin K. What are the sources? Very easy and edible sources: milk and milk products, दूध, दही, छेना, paneer, soybean, tofu, tempeh या soya milk, तिल, ध्यान रखें sesame seeds, तिल सफेद या काले, they are excellent source of calcium. 100 ग्राम तिल हमारे शरीर की 75% जरूरत कैल्शियम की जरूरत को पूरा करते हैं. So ensure we can add more and more of sesame seeds. Our non-vegetarians के लिए seafood, मछली या sardines or salmon or any marine or fresh waters fish is good. हरी पत्तेदार सब्जियों का भरपूर सेवन कीजिए, और beans and legumes like white beans, kidney beans यानी राजमा या छोले, chickpeas या काले चने, इनका भरपूर इस्तेमाल कीजिए. These are very rich and good source for your bone health. आपकी bone density को बढ़ाता है. Thank you so much. With this, I will end this PowerPoint presentation, and I am all set to take all your questions. Excellent. In fact, this is such an eye-opening presentation. I was requesting not to do it, but I think this has cleared a lot of things which we have never really thought about. और ये menopause इतना serious disease है, ये तो पता ही नहीं था. मतलब should we call it a disease or phase of life? We don't know. Just a phase of life. Disease समझ के ही हम गलतियां कर देते हैं.
घबराती हैं वो तो आप डिजीज है तो फिर हम कैसे बचें? Okay, friends, if you have questions, please raise your hands and ask directly. I've seen a lot of questions being asked in the chat box. एक क्वेश्चन तो बहुत वैलिड था कि एचआरटी का कोई आपका साइड इफेक्ट्स होता है क्या? देखिए, किसी भी दवा का और ट्रीटमेंट का कुछ तो साइड इफेक्ट होता है, लेकिन आज कोई भी दवा के जो साइड इफेक्ट है ऑलमोस्ट उतना ही एचआरटी का। बट एक चीज बताना चाहूंगी, एचआरटी सबके लिए नहीं है। तो डॉक्टर हैज टू, यू मस्ट गो टू डॉक्टर, डॉक्टर से बात कीजिएगा, जिससे वो आपकी कंडीशन को एनालाइज करके बता पाएंगे कि आप सही कैंडिडेट हैं कि नहीं एचआरटी, तभी एचआरटी को नहीं दी जाती। हमारे बीच एक ऐसे भी हैं जिनको काफी आराम मिला है होम्योपैथिक मेडिसिन से। वुड यू लाइक टू इंटरेक्ट विद हर? शी हैज सेड समथिंग ऑन द चैट, अगर आप चैट पे देखना चाहें। आई विल लव टू। ओके, रवि जी, एक चैट में है, मैं एक्चुअली मैं फोन मोबाइल से ना कर रहा हूं, तो देखिएगा जरा। एक मैडम का वहां पर एक रेफरेंस था दैट उनको होम्योपैथिक मेडिसिन से काफी रिलीफ मिला है। कुड बी आस्क हर टू प्लीज कम फॉरवर्ड एंड से समथिंग एंड इंटरेक्ट विद हर? Yeah, please search me up. Ma'am, जस्ट can I ask something? यस। हाँ जी, प्लीज प्लीज प्लीज। एक्चुअली जो भी एचआरटी ट्रीटमेंट्स अगर मैं डॉक्टर जो भी अगर प्रिस्क्राइब करते हैं, तो वो जितने सालों के लिए जब भी लाइक प्रिस्क्राइब करते हैं, तो उतने सालों तक वो ट्रीटमेंट कैरी करना वो सेफ है? डॉक्टर ना आपकी सारी कंडीशन समझ के ही एचआरटी सजेस्ट करेंगे, तो वो सेफ क्लियर होता है। और कई बार ऐसा होता है लंबे अरसे तक नहीं लेनी होती, थोड़े दिन में हमें असर दिखता है। बट आप करिए ये कि जब आप ट्रीटमेंट के दौरान डॉक्टर से कनेक्शन मत छोड़िएगा, सो दैट आप कंडीशन डिस्कस कर सकें। तो अगर ओके ओके, वो रिमूव कर सकते हैं, और अगर वापस एडजस्ट कर सकते हैं। या ओके ओके, थैंक यू सो there is a serious problem with our internet today, so things are not as clear as they are normally. Even I am having to use a mobile phone to work today because laptop is totally shut. So जो मैडम का नाम था अंजू मोनोट जी, आप शायद वहां पर हैं, प्लीज रेज योर हैंड, वुड लाइक टू ब्रिंग यू अप। इट्स अ वेरी गुड टॉपिक यू हैव शेयर्ड। ओके, डॉक्टर साहब, एक आपसे प्रश्न कर, सॉरी डॉक्टर साहब बोल रहा हूँ बिकॉज Okay. हम डॉक्टर ही डॉक्टर। Hello. हाँ जी, हाँ, This is बोलिए, Anju बोलिए। Monot. Yeah. So thank you so much for allowing me to speak. And I आपकी would आवाज love नहीं to आ रही। speak later. And हाँ, hello, can you hear me हाँ जी, now? बोलिए। हाँ हाँ, Yeah. बोलिए, आप अपने एक्सपीरियंस के बारे में बोलिए। Can you hear me now? यस यस। Yeah, thank you. Yeah, thank you for inviting me here. So actually, I am a yoga instructor and meditator, and for some reason, I got my early menopause at the age of 43. Now I'm 45, and I'm already like post-menopause stage. So I had like really tough time for this thing because it was early, and I didn't know what is happening to me because it was too early. And I never wanted to go with HRT because my doctor told me that the HRT has the side effect as bad as cancer. You can be more prone to get the cancer. So I never wanted to. I always go for the naturopathy and homeopathy. Until unless it is very urgent, I avoid the medicines which has side effects. So that is how my body. So I tried my homeopathy doctor. There is one homeopathy doctor. Basically, he's from Australia, but he learned everything from India. And she prescribed me some medicine, and that medicine actually worked very good for me. So the medicine, I should not suggest medicine because I'm not a practitioner. So there could be different medicine, different hormone thing for different people. So I recommend people to go for homeopathy. And also she gave me some herbal thing like some ashwagandha and some kind of thing which is if it in real form, in pure form, they actually very effective. So I have no night sweats and nothing, and but I get mood swings, but that can be managed by my meditation and yoga and exercises. So that's how I am coping with it. And yeah, I'm still need to work with my
mood swings, which I'm waiting for. This is very good sometime, this is not good sometime, but most of the problems are gone, and I'm able to live my very energetic and busy life all day. Yeah. So thank you so much for inviting me here. Thank you Anju Hope ji. you आप कहाँ all से could आए हैं? hear me. आप कहाँ से आए मैडम? Actually, मैं रहती हूँ बैंकॉक में, and basically belong to Jodhpur, Rajasthan. Excellent. Okay, so बहुत अच्छा बताया आपने, but Hello. डॉक्टर मीनू जी आप हैं, रवि आप इनको म्यूट कर दीजिए मैडम. अंजू जी Please बहुत mute yourself. एक्चुअली होम्योपैथ काम करती है, लेकिन यही जैसा कि मैंने कहा, हर विमेन की कंडीशंस वेरिएबल है, किसी को ज्यादा होती है, किसी को कम, किसी को कोई चीज से फायदा मिलता है, किसी को नहीं मिलता. तो अपनी कोशिश करते रहें, जिससे फायदा हो जाए उसको कंटिन्यू कीजिए. जैसा कि मैंने कहा, एचआरटी जरूरी नहीं है सबके लिए, बट कुछ कुछ कैंडिडेट जिनको कहीं ज्यादा प्रॉब्लम है उससे, उनको एचआरटी सजेस्ट करते हैं फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. वो जरूरी नहीं कि पूरे 10 साल ही एचआरटी. Absolutely. Right? So it Thank has you. decided by the doctor properly. Okay, एक बात पूछनी थी आपसे, तो हम लोग का जब मेनोपॉज इतना ही सीरियस टॉपिक अगर है, तो why is it not a part of the school education like you have sex education now? People are talking about sex education as a very important topic. Don't you think that menopause should be a part of the topic and everybody should know about it? Vouch for it. मेरा बस चले अगर करिकुलम चेंज हो तो पूरी तरह से ये भी समझाऊं, क्योंकि एजुकेशन जब हम दे रहे हैं, ह्यूमन एजुकेशन एटलीस्ट होलिस्टिक होनी चाहिए. क्यों हम एक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ हटा देते हैं उसमें से? जब आज हम चाइल्ड बर्थ, रेस्पिरेशन, सारी चीजें बताते हैं, तो क्यों नहीं हम ये लेट फेज ऑफ ह्यूमन लाइफ भी डिस्कस करते हैं? इसको भी आना चाहिए, और वो भी स्कूल लेवल पे आना चाहिए, क्योंकि हमारा जो ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन है 10th के बाद, इनफैक्ट अभी तो 9th-10th में सिलेक्शन होने लगे कि साइंस लोगे या नहीं लोगे. तो मिडिल स्कूल में अच्छी तरह से इसको डिस्कस होना चाहिए, बिकॉज ये लाइफ का एक स्टेज है जिसको हम छोड़ नहीं सकते. आपने कुछ काफी सारी जो सिम्टम्स बताई थी इसमें, जिसमें एक डिप्रेशन बताया था आपने. आप एक बात बता रहे थे दैट women should prepare themselves for this phase of life. ये जो प्री प्रिपरेशन क्या है जो आपके हिसाब से करना चाहिए थ्रू न्यूट्रिशन, so that they don't have to face so many difficulties? करेक्ट. तो पहली चीज क्या है कि आप जब 40 में स्टेप इन करते हैं, तो जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, 30 प्लस के बाद विमेन शुड गेट एनुअल ब्लड टेस्ट डन. एनुअल हेल्थ चेकअप जरूर कराना चाहिए उनको, जिससे कि उनको पता चले उनके कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स के पैरामीटर्स क्या हैं. सबसे पहला उनके विटामिन मिनरल डेफिशिएंसीज है कि नहीं, कहीं वो है तो उनको भी हमें एड्रेस करना है वाया न्यूट्रिशन. कोलेस्ट्रॉल अगर है तो लाइफस्टाइल चेंज करनी है, खाना ठीक से बैलेंस करना है, एक्सरसाइज बढ़ानी है, जिससे वो कोलेस्ट्रॉल के लिए दवा की जरूरत नहीं पड़े. मैं मैक्सिमम पेशेंट देखती हूँ जो कि कोलेस्ट्रॉल डॉक्टर ने 5 साल 7 साल पहले देखा और दवा प्रेस्क्राइब कर दी, और वो शुरू हो गए कोलेस्ट्रॉल दवा पे, विदाउट एनी पुटिंग रियल राइट एफर्ट कि उसको हम लाइफस्टाइल चेंज के दौरान ही बदल सकते हैं. तो चीजें जो कि हम लाइफस्टाइल से बदल सकते हैं उनकी कोशिश करें. प्लस मेनोपॉज में सबसे बड़ा खतरा वुमेन को होता है ऑस्टियोपोरोसिस का, तो उसके लिए हमारी हड्डियों का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है. तो ध्यान दें हमारा कैल्शियम और D3 का लेवल अच्छा हो, और एक डेक्सा स्कैन जरूर कराएं women when they reach in their 40s. DEXA scan will help to see real bone strength in their body. So अगर वो वीकनेस दिखती है तो एटलीस्ट दे कैन एड्रेस इट प्रॉपर डाइट से, बिकॉज खाना टाइम लेता है अनलाइक मेडिसिन टू हील अप, सो दैट द वुमन इज रेडी टू फेज मेनोपॉजल फेज, जहां एस्ट्रोजन कम भी हो जाएगा. अगर उसकी डेंसिटी अच्छी है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस कम होंगे कंपेयर टू वन हु हैज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट. So that is about. What is the holistic diet which you are suggesting? आप 2-3 बार बोल रही हैं that you should have a good diet. Could you say a particular diet कि हाँ ये वाला ले लीजिए आप? Diet should be low in fat. Okay. Whatever fat you get should be healthy fat, which is your healthy fatty source fatty acids, which is monounsaturated fatty acids, like जो कि हमें nuts से और seeds से मिलता है, या एवोकाडोज अभी अवेलेबल हो गए इंडिया में, तो वो भी हम ऐड कर सकते हैं. और जो लोग नॉन वेजिटेरियन या फिश खाते हैं उनको फिश से मिल जाता है. तो these are the healthy source of fatty हाँ, acids. ये तो आप बता चुके हैं. I think maybe I got confused. This you have already dealt with. That cholesterol level. Excellent. Processed food
ना खाएं, मैदा या रिफाइंड फ्लावर ना खाएं, अननेसेसरी शुगर इनटेक ना करें, जिससे कि उनका ट्राइग्लिसराइड लेवल भी बरकरार रहेगा, सही रहेगा। क्योंकि ट्राइग्लिसराइड और बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के चांसेस नेचुरली हाई हो जाते हैं, तो उनको पहले से कंट्रोल रखें। क्योंकि अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल ठीक है तो आप अगर नॉर्मल स्टेज में है तो आपके चांसेस हाई होने के थोड़े होंगे, पर जिनका हायर साइड में होगा उनका बियॉन्ड रेंज जाएगा एंड उनके चांसेस ऑफ हार्ट डिजीज ज्यादा होते हैं। प्लस आप ध्यान रखें कि आपका खाना पीना एक बैलेंस डाइट जिसमें कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट सही मात्रा में हो। वो डिपेंड करता है आपके खाने का पैटर्न क्या है। जनरली हम बताते हैं कि आपकी जो अगर एक गोल प्लेट को अगर हम ले तो उसका 1/4 हिस्सा हमारा प्रोटीन का होना चाहिए, 1/4 कार्बोहाइड्रेट का, और बाकी आधे में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होने चाहिए। तो दैट इज अ बैलेंस वे ऑफ ईटिंग होलसम फूड, जिससे कि आपके बॉडी का इंसुलिन लेवल भी सही रहे, ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल रहे, कि वो सडनली शॉट अप करके आपको डायबिटीज ना दे जाए पोस्ट मेनोपॉज। Excellent. So now we move on to the next phase of our session. Kavita ji, are we ready with questions? In the meantime, Yogita ji, Kavita ji, I'll pull you in with the questions right now. In the meantime, Yogita ji has raised her hand. Ravi, please, can you unmute her? Ravi, are you there? Yeah. हेलो, Please unmute हाँ Yogita मेरी ji. हाँ जी, आवाज आ बोलिए। रही है? हेलो, बिल्कुल बिल्कुल एकदम क्रिस्प आ हाँ रही है। या नमस्ते मीनू जी। मैं कुछ सवाल था कि जैसे अभी आपने बोला कि एनुअल चेकअप जो है उससे आपको पता चल सकता है कि आपकी क्या स्टेज है। आप जैसे आई एम 39 मीन्स जस्ट 40 टर्न हुआ है, सो विच मेडिकल टेस्ट विल यू रिकमेंड दिस स्टेज? अगर आपके फैमिली में कोई थायराइड का कंडीशन है, जैसे आपके पापा किसी को थायराइड डिसऑर्डर रहा है, थायराइड नहीं भी है तो फिर भी आप एक करा लो, बिकॉज वुमेन इन पोस्ट 30s लेट 30s टेंडेंसी बन जाती है हाइपोथायराइडिज्म की। तो एक थायराइड फंक्शन टेस्ट, दूसरा लिपिड प्रोफाइल टेस्ट जिसमें Okay. आपके ट्राइग्लिसराइड सब आ जाते हैं, हाँ हाँ, तीसरा वेजिटेरियन अगर हैं तो विटामिन B12, B12, ओके। विटामिन D3, कंप्लीट ब्लड काउंट CBC, ओके। और उसके साथ आयरन एंड सेरम फेरिटीन भी करवाएं। सॉरी, सेरम फेरिटीन, सीरम फेरेटिन, हाँ जी। ये किससे रिलेटेड होते हैं? सीरम फेरेटिन, फेरिटीन हमारे स्टोर्ड आयरन लेवल होता है। ओके। सेरम आयरन जब हम करते हैं वो सर्कुलेटिंग आयरन है, सेरम फेरिटीन हाँ। है, दोनों की जरूरत है जानने की। अच्छा, और दूसरा जो आपने अभी जो बताया कि हार्मोनल चेंजेस जो है मतलब एस्ट्रोजन का है, उसके लिए मतलब दिस इज इनफ और कि सब कुछ और बना? एक डेक्सा स्कैन करवाइए जिससे आपकी बोन मिनरल डेंसिटी का कंप्लीट पता चलेगा। हाँ। और हार्मोनल प्रोफाइल आप करा सकते हैं 40 हो जाए आपका, कब करवा सकते हैं। प्रॉपर वुमेन हार्मोनल प्रोफाइल टेस्ट होता है, उसमें आपके सारे हार्मोन अच्छा, तो हार्मोनल इस एज में करना चाहिए या शुड वेट फॉर? आप 1 साल और वेट कर सकते हो अगर कोई सिम्टम्स नहीं है आपको। तो अगर आपका पीरियड रेगुलर है, कोई स्पेशल सिम्टम्स नहीं दिख रही है तो आप 2 साल वेट करके करा सकते हो। नहीं, एक्चुअली मतलब पीरियड्स तो रेगुलर एवरी मंथ डेट एंड एवरीथिंग, बट पीरियड्स आना जो है तो वो कम हो गया है, जैसे 1 और 2 डेज जस्ट। आप एक बार करवा सकती हैं, आप एक बार चेक कर सकते। ओके, थैंक यू वेरी मच। गया। एक टेस्ट और, कविता जी, सॉरी, एक डायबिटिक प्रोफाइल टेस्ट जरूर करवा लीजिए। ओ या क्योंकि मुझे प्रेगनेंसी में पोस्ट वो हुआ था एक्चुअली, वो डायबिटीज। हाँ, excellent. प्रेगनेंसी में Okay. था। हाँ, Okay. ओके, थैंक यू। Thank you, madam. Kavita ji, are you there? Yes, I'm there. Yeah, please start with the questions. So the first question, I am 44 years of age. I find my breast painful, mostly after 10 days of my menstrual. So is it related to menopause? And it also has white discharge increase during the period. Not necessary it is because of menopause. It can be because of onset of perimenopause, but it is very normal close to the periods, because again during periods our estrogen and progesterone level changes, and that gives heaviness and soreness in our breast, which is very, very normal. If you think after those 10 or 12 days of menstruation that becomes automatically normal, then there's nothing to worry.
If you think it is still it is still existing, please seek advice. And white discharge are also common. If it is little one, lesser amount, then no need to worry. But if you think the amount has increased gradually over a period of time and it is stinky, like it is smelling badly, then yes, you must address it, get a test done, checkup done, a gynae checkup done, so that it can they can check whether the discharge are having any bacterial or fungal infection or not. Usually candida infections are seen to be very common, and which can also trigger this white discharges. Okay, one of the major concerns is what should we do to handle hair fall and hair dryness and skin dryness during menopause? Very good question. We know that elastin, collagen, etc. are responsible for our skin quality. But what are the skin or hair elements which need to boost up? First is vitamin A, vitamin E, vitamin C, iron, and protein. These are the main important ingredients in your diet. So your diet should be rich in iron, जिसमें ज़्यादा हो iron rich food, यानी हमारी दालें, हरी सब्जियां, जिससे हमें iron मिलता है, plus nuts जैसे almond, cashew nut, peanuts. इसके अलावा dried apricots, these are good sources of iron. So उसका intake ज़्यादा करें. इसके अलावा vitamin C यानी जितने भी citrus fruit हैं या guava या अमरूद, yes, one medium size of guava, एक medium अमरूद हमारे 80% vitamin C requirement of the day fulfill करता है. So what are we waiting for? You can have, it is easily available throughout the season. Just have one guava every day. तो vitamin C हो जाता है. Vitamin A के लिए जितने भी लाल, पीले, orange, purple कलर के fruits या vegetable हैं उनका intake कीजिए, because these are all rich sources of vitamin A, जैसे कि गाजर हुई या चुकंदर हुआ या beetroot कहते हैं या पपाया है या अभी तो मैंगो आ रहा है. So ensure you are having it plentiful. जितने ये कलरफुल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल डालेंगे, ये सारे विटामिन एंड मिनरल्स हमारी डाइट में नेचुरली आ जाएंगे. इसके अलावा आप होल ग्रेन्स जैसे दालें और जो बीन्स खाते हैं, उसके साथ होल ग्रेन्स जैसे हम दलिया लेते हैं या चावल लेते हैं, जवार लेते हैं, बाजरा लेते हैं, होल ग्रेन्स ध्यान रखें, प्रोसेस्ड नहीं लें, मैदा बिल्कुल ना लें. इनमें भी कई मिनरल्स एंड विटामिन्स होते हैं जो आपकी स्किन का टेक्सचर एंड इलास्टिसिटी को बनाए रखता है. और इसके साथ साथ खाने में प्रोटीन की मात्रा ठीक करें. मैंने एक सिंपल आपको मेजरमेंट बताया कि आपकी प्लेट का 1/4 हिस्सा प्योर प्रोटीन होना चाहिए. वेजिटेरियन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन इज दालें, सभी तरह की दालें, बीन्स, छोले, राजमा. इसके अलावा दूध, दही, छेना, पनीर या सोयाबीन. और इसके अलावा नट्स एंड सीड्स. नट्स एंड सीड्स एक मुट्ठी से ज्यादा नहीं लें, 10 से 12 कोई भी नट्स, 1 या 2 चम्मच सीड्स अ डे. और नॉन वेजिटेरियन में हम एग्स ले सकते हैं, मीट्स हैं, फिश है, व्हाटएवर एनिमल सोर्सेज यू कैन ऐड. तो कोशिश करिए कि आपका प्रोटीन कम ना हो. प्रोटीन कम होने से भी बाल झड़ेंगे. ध्यान रहे, बालों का ईच स्ट्रैंड इज मेड ऑफ प्रोटीन. सो वी नीड प्रोटीन हाई डाइट. तो अगर ये सारी चीजें हम बैलेंस करते हैं और साथ में खूब सारा पानी और रेगुलर एक्सरसाइज करें, जिससे कि हमारी नींद भी बेटर हो, एंजाइटी कम हो, हार्मोनल लेवल्स इंप्रूव होंगे, तो हमारे बालों की क्वालिटी धीरे धीरे अच्छी होने लगेगी. एंड फॉर विटामिन ई व्हाट शुड वी टेक? विटामिन ई हमारे ये नट्स एंड सीड्स में नेचुरली रहती हैं, तो इसके लिए अलग से नहीं. 1 हैंडफुल नट्स एंड सीड्स का रोज खाएं, उसमें आपको मिल जाएगा. 1 हैंडफुल मतलब 10 से 12 नट्स खाइए, 1 से 2 चम्मच सीड्स लीजिए रोजाना, आपको विटामिन ई मिलेगा. प्लस जो हम तेल या घी में खाना बनाते हैं उसके अंदर भी विटामिन ई होता है, तो उसके लिए अलग से कुछ नहीं करने की जरूरत. Thank you so much. Thank you. Next question, Kavita ji. Yeah. So can non-menopause even after the age of 52 lead to panic attack? My wife had an attack few days back at night, so I'm trying to know whether is this the reason for it. What did you say? Non-menopause, or what did you start with your voice? Non-menopause, even after the age of 52, she had a panic attack. Panic attack could be of various reasons. I need to address what the real reason is. If it is not menopause, could be any other health issue, or maybe she is suffering with some other anxiety disorder or any other health issue which is not known. So unless we discuss in detail, it's difficult to understand. So I will advise, please discuss with your healthcare provider, or if you want to discuss with me, you can connect me directly so that I can understand, and then based on I can address the issue. Why don't you pull him up? Who's the answer question? Who's asked? It is from Sanjay Malhotra.
Sanjay ji, why don't you come forward? You've been quite regular at our shows. You deserve to talk directly. Sanjay ji, please unmute yourself and ask the question. Okay. Next question क्या है, Kavita ji? I Yeah. think he's not coming forward. Yes, sir. Yeah, please Actually, ask. I'm new with the Zoom, so I was just trying to find the button how to unmute it. So actually, few days back, during night, my wife had some kind of panic attack. So during this session, it came to my mind, is it connected to menopause? Because she is 52 now, and she has not yet attained so-called menopause or whatever, like we are discussing. So just it came to my mind, so I thought of to clarify. Sanjay ji, is she going through the phases of menopause now? That she is going through any of the phases जो आज मैंने discuss किया, hot flush या anxiety या normally uneasiness या कोई frequent मतलब irregular periods, ऐसा कुछ हो रहा है उसके बीच में इन दिनों? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है. Everything is normal. She is not going through whatever we have discussed or I have heard it today. कि आपको पता है कि वो कोई बुरा सपना नहीं देख रही थी, घबरा के ना उठी उस वजह से, या उन्होंने पानी नहीं पिया हो, बहुत प्यास लगने से भी इस तरह के नाइटमेयर्स या अचानक पैनिक अटैक होते हैं. Okay. Yeah, could be. She was dreaming or something, but the kind she was behaving, we got really panicked. And on that night, I thought of, rather everybody at home got worried, and we were thinking that we lost her. But fortunately, she came back and she was able to, because she was almost out of her mind, and she was saying that I am about to leave. She could see. Hope you have got her all medical tests done. Yeah, but Hanji, but nowadays, it is lockdown, so we didn't want to take any chances to go to any hospital. अगर लॉकडाउन जब ठीक हो जाता है तो एक बार चेकअप जरूर करा लीजिएगा. कई बार ऐसा हो कि छोटा क्लॉट वगैरह ना आ गया हो कहीं, जो कि बहुत ही माइनर स्ट्रोक के चांसेस होते हैं, जिसमें कि बिल्कुल वो कुछ नहीं बोल पा रही हैं. आफ्टर फ्यू सेकंड्स इफ दैट रिवाइव्स शी इज नॉर्मल अगेन. Thank you. Thank you, Sanjay ji, to asking that question. In fact, हमारे बीच में Thank you for giving me the प्रॉब्लम ये हो रहा है. Sure. अच्छा, ऐसा है, I have a request to make कि this time for today we have allowed you to unmute yourself and ask your question. But आप लोग क्या कर रहे हैं कि हर कोई जो है unmute करता जा रहा है, तो इससे हम लोग का show disturb हो रहा है. We will not be able to continue like this. So मैं क्या बोल रहा हूँ? My request is that अगर आपको कुछ पूछना है, तो please आप अपना हाथ raise करिए. I will unmute you here, and I will rather ask you to unmute yourself, and then you can ask. Do not unmute yourself like this. वो बहुत disturb कर जाएगा पूरा flow of event को, and we will have difficulties. So please raise your hand. We will request you to unmute yourself, and then you come forward. Kavita ji, next question, please. Yes. I am 46 years of age, and last 2 years I have little reddish discharge for a week before bleeding, which lasts for 2 to 3 days. So is it normal? That's normal. That is called spotting. So that's normal. Nothing to worry about. Next question. Is skin pigmentation related to menopause, and how to take care of it? Possible skin pigmentation can take before menopause also, or during menopausal phase also. If you are going through skin pigmentation, as I have suggested, skin healthy food, vitamin A, vitamin E, vitamin C, and increased protein. But on top, you can try putting retinoid rich cream, which is basically retinol, यानी विटामिन ए से बना होता है. इजीली अवेलेबल है इंडिया में केमिस्ट शॉप में, रेटिनो या ट्रेटिनो के नाम से. मिनिमम पावर से शुरू कीजिए, उसको रोजाना रात में सोने के पहले मुंह धो के लगाइए, उससे धीरे धीरे आपके पिगमेंटेशन हट जाएंगे. Okay, next question. I am a hypothyroid patient. How do I manage my weight during menopause? So are you going, the person is already during going through menopause, or she is just asking that how she will face menopause? She's asked how to manage weight during menopause. Okay. If she's a hypothyroid. Very big myth people usually associate that if they are having hypothyroid, their weight is bound to go up. Yes, thyroid hormone is a metabolism controlling hormone. अगर hypothyroid होता है तो general tendency of your body is to shoot up on weight. But इसके साथ साथ आपको ये ध्यान रखना है कि थायराइड के साथ 10 से 12 मिनरल एंड विटामिन डेफिशिएंसीज हमारे बॉडी में सेट इन करती है, और अलॉन्ग विद प्रोटीन डेफिशिएंसी. तो
उनको आपको एड्रेस करना है जिससे आपका मेटाबॉलिज्म ठीक रहे, जिससे कि नेचुरल वेट पुट ऑन नहीं हो, जो कि आपको डर लगता है कि थायराइड के साथ है। अब रही बात मेनोपॉज में, तो आपको पता है कि वो नॉर्मल से ज्यादा वेट पुट ऑन होगा, तो इसके लिए क्या करेंगे, जैसा कि थायराइड मैनेजमेंट के लिए आपको विटामिन मिनरल डेफिशिएंसी से बचना है, मतलब कि आपकी डाइट बहुत ही न्यूट्रिशियस होनी चाहिए, अच्छा खाइए, खूब सारा प्रोटीन खाइए और नियमित तौर पे डेली एक्सरसाइज कीजिएगा। ध्यान रखिए, जब हम सोते रोज हैं, खाना रोज खाते हैं, तो एक्सरसाइज भी हमें रोजाना करनी है, उसमें कोई कटौती नहीं चलेगी। स्पेशली मेनोपॉजल फेज में तो बिल्कुल नहीं, मेनोपॉज में रोज आपको एक्सरसाइज करनी है। दिस विल हेल्प यू टू लूज वेट ग्रेजुअली, और एटलीस्ट वेट को कंट्रोल कर सकेंगे कि वो बढ़े ना। Okay. I'll just read out the next question. What to do if you have disturbed cycles every 15 days for 5 to 10 days with lot of pain? You must seek immediate gynec advice, because this frequent discharge of frequent blood flow can lead your hemoglobin level down, your iron level may fall severely. This could be a reason of endometriosis or thickening of your endometrium wall. So please don't ignore, immediately seek your gynecologist's suggestion. She will help you and address the problem. Okay. Next is, do we experience breast tenderness during this phase? Yes, absolutely. That's a very, very common symptom. What is the most देखो ना कितनी अच्छी बोल रहा है, अटना होने था काम को। एक मिनट। Should I just ask the next question? Kavita, you can go ahead. I think he's lost. Yes. Can't Yeah. hear. So I've had a hysterectomy managing with over the shelf herbs like red clove, soy, sesame products. It has helped me significantly in managing some of my menopausal symptoms, but I'm worried about osteoporosis. So having the right calcium diet, should I still consult a doctor for HRT? If you think all other symptoms are manageable and your diet is rich in calcium, you must ensure you are regularly supplementing yourself with vitamin D3, because there is zero source of food for vitamin D3 technically. And also, if possible, try to expose yourself in early morning 2 hours sunlight. Remember, early morning only, because later during the day, sunlight becomes very harsh and strong. That can give you skin cancer. So 2 घंटे sunlight early morning, उसके अलावा रेगुलर विटामिन डी सप्लीमेंटेशन, खाने में कैल्शियम मैक्सिमाइज करिए, और उसके अलावा 500 to 600 mg ऑफ कैल्शियम की डोसेज रोजाना लीजिए एज अ सप्लीमेंट। उसके अलावा अगर लगता है कि बाकी और कोई ग्रेट सिम्टम्स नहीं है, देन यू डोंट नीड टू। अगर लगता है कि उसके अलावा कई सिम्टम्स आपको आ रही हैं, तब यस, यू शुड गो एंड डिस्कस। Okay. Is piles and anus swelling related to menopause? Not necessary. It is more related to your irregular food habits. If you are having piles, and you must be suffering with some sort of constipation or diuretic issue. And also you need to understand any spicy food, any heat generating food you should avoid. And try, जैसे कि अगर आप इसको समझिए, अगर आपके शरीर के ऊपर कहीं घाव होता है, हम उस पर मिर्च मसाले नहीं डालते, हम क्या करते हैं, मेडिसिन लगाते हैं, दवा लगाते हैं जिससे कि वो हील अप हो। अगर हम उस पर मिर्च मसाला लगाएंगे तो क्या होगा, वो और घाव बढ़ेगा, नाजुक हो जाएगा। तो उसी तरह पाइल्स इज इनर एनस के अंदर घाव हो जाते हैं हमारे, तो अगर हम स्पाइसी फूड खाएंगे तो उस पर ट्रिगर करेगा। हार्ड टू डाइजेस्ट या सूखा, बहुत ही ड्राई अगर हमारी बॉडी में हो जा रहा है, जिससे कि कॉन्स्टिपेशन, हार्ड स्टूल होगी, तो क्या करेगी, उस घाव को बार बार पुश करेगी जब स्टूल डिस्चार्ज करेंगे। तो खाना ऐसा खाइए जिससे कि बॉडी लाइट रहे, लेस स्पाइसी, इजी टू डाइजेस्ट, इजी टू पास आउट द स्टूल हो, जिससे कि उस घाव को ट्रिगर ना करे। तो देखिए पाइल्स ठीक हो जाएंगे, थोड़ा टाइम लगता है। How to take care of sensitive bladder during menopause? I have suggested Kegel exercises. Please try doing that, and try to drink water एक साथ 2 से 3 ग्लास पानी एक के बाद एक करके पीजिए, जो एक बार ब्लैडर फुल हो, so that you can discharge. एंड देन जब यूरिन जब डिस्चार्ज करते हैं, तो ऐसा नहीं कि एक बार डिस्चार्ज किया तुरंत उठ के आ गए, डोंट डू दैट। Those who are going through menopausal phase must discharge urine, then just wait
और हो सके तो एक बार 1 मिनट के लिए उठिए और फिर वापस बैठ के फिर ट्राई कीजिए यूरिन पास करने का, सो दैट यू एंश्योर योर ब्लैडर इज कंप्लीटली एम्प्टी। तब आइए तो फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम हो जाएगी, यू विल फील बेटर। उसके अलावा आप वो प्रिमरोजा की कैप्सूल्स खा सकते हैं रोजाना एक, दैट विल आल्सो हेल्प यू इम्प्रूव द कंडीशन ग्रेजुअली। Ma'am, what are the exercises? Can you please repeat it? केजेल एक्सरसाइज एक एक्सरसाइज है जो हम अपनी पेल्विक मसल्स के साथ करते हैं। इसके लिए बहुत आसान है, जैसे आप कहीं भी बैठे हैं, स्ट्रेट बैठिए, अपराइट मतलब सीधे होके जैसे तन के बैठिए और सोचिए कि आपको यूरिन आ रही है, कि आपको टॉयलेट जाना है यूरिन पास करने, बट आपको टॉयलेट फैसिलिटी नहीं है या आपको रोकना है किसी भी तरह। तो आप रोकने के लिए क्या करोगे? आप अपने आप को अभी बैठे बैठे सोचो, आपको समझ आएगा। यूरिन आ रहा है और हमें रोकना है, पेशाब नहीं करने जा सकते, तो वो जो सिचुएशन है दैट इज केजल एक्सरसाइज। मतलब हम अपनी पेल्विक मसल्स को एंगेज करते हैं जिससे कि हम होल्ड कर सकें, दैट इज केजल एक्सरसाइज। को दिन में 2-3 बार आराम से कई बार कीजिए, मतलब एक बार जब करें 3-4 या 10 के रेपिटेशन कीजिए और दिन में 2 से 3 दफा कीजिए। देखिएगा आपके पेल्विक मसल स्ट्रांग होंगी जिससे कि आप यूरिन होल्ड कर पाओगे। हेलो हेलो, हाँ जी बोलिए। हाँ सीपी जी बोलिए। ये यार ये दिस एक्चुअली एक मिनट रुक जाते हैं। रवि रवि are you there? Yes, I am there. There is some problem, technical problem today, I think so. I think everybody I is don't know how they are unmuting getting themselves unmuted. एक सपना जी है, हाथ रेस किया उन्होंने। Let us allow her to talk. सपना जी, please unmute yourself and ask. Sapna ji, are you there? Yeah, we are asking them to. unmute. Yeah, wait. Yeah, please unmute. Hi. Hi. Yeah. Actually, I'm taking Cevista contraceptive medicine to hold my menopause thing. I was having heavy, so doctor advised me to take Cevista, which is controlling my bleeding for last 2 years. In last 6 months, I stopped the Cevista last month, and after that, I didn't have my periods. So should I go for any examination to see if my period stopped, or I should wait? You should wait for at least 3-4 months more, and then if you see there is more periods, you visit your gynae for the examination. But still wait for 3-4 months because it's just a month that you have stopped. And is this medicine harmful in any way? Is this medicine harmful? No such impact. It's fine. Even if I'm taking for last 2 years. No, that's fine. And I'm sure that you have got a follow-up visit with your gynae while you were having this medication. If not, then please go and visit after maybe another 2 months. The medicine is fine. No need to worry. सपना जी, are you done? Actually, आपका आवाज बंद हो गया बिल्कुल। The other thing is, सपना जी, हाँ। My ferritin level is very low, but any iron supplement doesn't suit me. Okay. हाँ, इसके लिए उपाय है सपना जी, आसानी से। ध्यान रखें, हम लोग ज्यादातर इंडियंस प्रॉब्लम ये है, हमारी खाने के साथ हम लोग दूध या दही जैसी चीजों का सेवन करते हैं। तो आयरन, अगर आप वेजिटेरियन है सपना जी? Yes. तो हमारी वेजिटेरियन सोर्सेज ऑफ आयरन क्या है? सब तरह की दालें, छोले, बीन्स वगैरह और हरी सब्जियां। तो जब आप ये सब्जियां और दालें खाती हैं, कोशिश कीजिए कि उसके साथ आप किसी भी प्रकार का छेना या दही ना ले या पनीर ना ले, क्योंकि दही, छेना, दूध या पनीर, दीज आर एक्सीलेंट सोर्स ऑफ कैल्शियम, और कैल्शियम के प्रेजेंस में जो आयरन आपके फूड में होता है वो अब्सॉर्ब नहीं होता है। सो इससे आप ऐसा करिए कि जब आप खाना खाते हैं उसके या तो आधे घंटे के बाद अपने दूध, लस्सी या रायता जो भी लेते हैं वो आधे घंटे के बाद लीजिए। जिससे क्या होगा, खाने में जो आपका आयरन है वो बेटर अब्सॉर्ब होगा, और आधे घंटे बाद चूंकि आप दही या रायता वगैरह लेंगे वो कि एक्सीलेंट सोर्स ऑफ कैल्शियम प्लस प्रोबायोटिक भी है, तो आपके गट हेल्थ को भी इंप्रूव करेगा और कैल्शियम भी अब्सॉर्ब हो जाएगा। इस तरह से आप दोनों के फायदे पा सकेंगे। प्लस चूंकि आप फेरिटिन लो है, तो ध्यान रखें जब आप खाना खाएं तो अपनी दालें और सब्जियों में खाने के जस्ट पहले थोड़ा फ्रेश नींबू का रस ऐड कर लीजिए। नींबू इज अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी,
तो विटामिन सी की प्रेजेंस में आयरन आपके खाने से बेहतर अब्जॉर्ब होगा बॉडी में, तो आपको आयरन अच्छी तरह से ऑप्टिमाइज कर सकेंगे एंड प्लस आप अपना कैल्शियम भी टाइमली ले पाएंगे। Okay, thanks a lot. थैंक यू सो मच। एक कविता जी, एक बीच के इसके पहले कि वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आलोक मोहता जी कुछ पूछना चाहते हैं शायद। आलोक जी आप अनम्यूट करके पूछ लीजिए अपने आप। मैम मेरी वाइफ के जो है अभी पीरियड्स में जो है उसमें इरेगुलरिटीज हो रही है बहुत ज्यादा। इससे पहले 4 महीना बीच में जो है मतलब पीरियड्स नहीं हुए, उसके बाद लगातार 15 दिनों तक हुए, फिर उसके बाद में अभी नॉर्मल हुआ, 15 दिन ही बीते हैं, फिर वापस पीरियड्स शुरू हो गए। तो व्हाट डज दिस इंडिकेट? दिस इज अ मेनोपॉजल फेज। कई दफा ऐसा होता है कि वो पीरियड्स समय से पहले आ गया, कई दफा होगा बीच में 2-3 महीनों तक नहीं होगा। जब तक कि वो 1 साल तक बिल्कुल पीरियड्स ना आए, उस फेज को अगर 1 साल तक बिल्कुल पीरियड नहीं आएगा तब हम कहते हैं कि मेनोपॉज हो गया। ध्यान ये रखिए, जो दोबारा आ रहा है उसका डर नहीं है, ज्यादा ब्लड फ्लो हो रहा है, कहीं ज्यादा हैवी फ्लो हो रहा है, तब जरूर डॉक्टर को दिखाएं। तो इसके लिए कुछ अभी मेडिसिन वगैरह लेनी है? कुछ अलग से नहीं, सिर्फ आयरन रिच खाना खाइए, जैसे कि खूब सारी दालें, पत्तेदार हरी सब्जियां खाइए खूब, और जैसा कि मैंने बताया दही साथ में ना खाएं, दही को आधे घंटे बाद खाइए, और हो सके तो नींबू डाल लीजिए, नींबू का रस ऐड कीजिए जिससे आयरन बेटर हो। और अगर फिर बहुत लो लग रहा है तब एक आयरन सप्लीमेंट ले सकती हैं, आयरन फॉलीफर की कैप्सूल्स मिलती हैं, ले सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू। एक पीएमटी नाम से कोई है जिसने अनम्यूट कर दिया अपने आप को, आप कुछ पूछना है क्या? पीएमटी नाम से कोई है? ये सब चीज में कोई मजाक नहीं करता, तुम ये समझते नहीं चीज। somebody anyways, आलोक अपना म्यूट कर दीजिए अपने आप को प्लीज। गुड। कविता जी नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। Yes. When I take primrose oil or fish oil, my white discharge increases. So is it due to menopause or am I allergic to it? This could be neither because you are allergic nor because of your menopause. I believe कि आपको हो सकता है कोई फंगल इन्फेक्शन हो, एक बार टेस्ट करा लीजिए फॉर कैंडिडा, वो टेस्ट से पता चल जाएगा। और अगर आपको फिर भी वाइट डिस्चार्ज हो रहा है और अगर इन प्रेजेंट सिनेरियो में आप टेस्ट नहीं करा सकते, तो एक छोटी सी सलाह है, अपने खाने में से शुगर को 2 हफ्ते के लिए बिल्कुल हटा दीजिए, नो चीनी नो मीठा एट ऑल। फिर देखिए धीरे धीरे आपका वाइट डिस्चार्ज ऐसे ही कम होने लग जाएगा। Because if there is any candida or any other fungal infection that thrives on sugar, हम जो मीठा खाते हैं उस पे वो जिंदा रहते हैं, तो अगर हम मीठा बंद कर देंगे उनकी फूड सप्लाई बंद हो जाएगी, वो ऐसे ही कम होने लग जाएंगे। Try doing it. Okay, there's one more question which has come. I don't know, how can we delay perimenopause or menopause? Naturally, we cannot delay it. But yes, estrogen, additional topping up of estrogen supply, जो कि हम बात कर रहे थे HRT की और different various method है उसके application से yes we can delay menopause, because वो artificial ऊपर से estrogen supply करते हैं, कई बार estrogen करते हैं, कई बार estrogen and progesterone दोनों की supply करते हैं, वो depend करता है किसकी शरीर को किसकी जरूरत है। So अगर if you are the one you are looking for delaying of your menopause, you must discuss with your gynaec and get a solution for it. That's it. I think this one has already been answered. Most important step one should take on the onset of 40. Ensure that your bone health is optimized. So calcium rich खाना खाएंगे, दूध, दही, छेना, पनीर, nuts and seeds, sesame seeds specially, क्योंकि sesame seed बहुत ही अच्छा सोर्स है हमारे कैल्शियम का। इसके अलावा हरी पत्तेदार सब्जियां भरपूर खाइए, और सोया या सोयाबीन खा सकते हैं तो उनको भी अच्छी तरह से लीजिए, एंड खाने में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाइए, जिससे आपका ओवरऑल हेल्थ स्ट्रांग रहेगा इन टर्म्स ऑफ बोन हेल्थ। विटामिन डी के लिए ऊपर से सप्लीमेंट कीजिए, और ध्यान रखें कि आपका वजन ज्यादा ना हो, आपकी BMI 23 के ऊपर नहीं होनी चाहिए, ये एक सिंपल इंडिकेटर है वजन के सही लेवल में रहने का। सो BMI 23 या उसके नीचे रहें, 23 के ऊपर है इसका मतलब आप ओवरवेट हैं, तो कोशिश कीजिए कि वजन घटाएं, और रोजाना एक्सरसाइज कीजिए जिससे कि आपका हेल्थ सही रहे। This will help you to. I'm 54 going through menopause. I doing good except water retention and hot flushes. Please advise.
तो वाटर रिटेंशन बहुत हो रहा है. देखिए हॉट फ्लशेस, वाटर रिटेंशन आर वेरी कॉमन बिकॉज ऑफ मेनोपॉज, क्योंकि एस्ट्रोजन हमारा कमती हो रहा है, बढ़ रहा है, कभी बढ़ता है, कभी एकदम कम हो जाता है, अप एंड डाउन चलता रहता है इस फेज में, तब हमें वाटर रिटेंशन होता है. तो कुछ चीजें ध्यान रखनी है कि रात के डाइट में स्पेशली नमक कम खाएं और पिकल कम खाएं या सोडियम रिच फूड कम खाएं. यानी कोई भी डब्बा पैक या कैंड फूड या बॉटल पैक फूड को कम इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि ये जितने भी पैक्ड फूड आते हैं इनमें सोडियम हाई होता है. प्लस ऊपर से टॉपिंग ऑफ सॉल्ट नहीं करें, मतलब टेबल सॉल्ट एज स्प्रिंकलर हम खाने पे ना डालें. जितना खाने में, बनाने में, पकाने में चाहिए बस उतना ही नमक इस्तेमाल करें. दूसरा, पानी का इंटेक बढ़ाएं. ये 2 काम करने से हमारे वाटर रिटेंशन में थोड़ी कमी आती है. इसके अलावा फ्रूट्स का इस्तेमाल ज्यादा कीजिए. फ्रूट्स आर गुड सोर्सेज ऑफ पोटेशियम दैट विल ऑटोमेटिकली रिड्यूस सोडियम रिटेंशन और सोडियम accumulation in your body, जिससे कि वाटर रिटेंशन कम होगा. तो मीनू जी, आप तो स्वयं एक बहुत बड़ी न्यूट्रिशनिस्ट हैं. यू हैव द होल चैप्टर, यू कवर एवरीथिंग, आई बिलीव, नॉट जस्ट मेनोपॉज. You have so many other aspects to cover. It was so nice of you to cover this chapter in such an elaborate way, where we had so many answers for just menopause. But अगर आप चाहती तो शायद आप इसको nutrition में convert करके you would have had the subject around nutrition only. I hope you can hear me. yes, मैं बिल्कुल सुन रही हूँ. मेरा so this is how जी कि women should learn to take charge of their own health. Most of the time I see they are usually dependent either on their husbands or their dads when they are not unmarried. When they are married, husband has to decide or take charge of their health. I don't know why. They need to understand it is their body. They are लीव नहीं करने, नहीं कर लीव नो था यार. अरे कौन है भाई, ये कौन है? ये एक मिनट, ये कौन है? रवि देखिए ना, कौन है ये? एक महापुरुष है जो बार बार म्यूट को ऑफ कर देते हैं. ये पूनम, you want to ask something? No, JC, today I think there is some technical problem with the Zoom. I know, I can understand. Poonam, you have unmuted yourself. So my yeah. Women should learn to take charge of their health. They should not be dependent on their dads, brothers, or husband to decide when they should go for a medical checkup or not. They should seek physician, professional help as and when needed by their own, not by others' permission. मैं अपना practical experience बताती हूँ. इतनी women आती हैं, out of them 60% will say immediately मुझे अपने husband से पूछ के बताना पड़ेगा. हस्बैंड जिनको आधी चीज पता ही नहीं है प्रॉब्लम कहाँ है, वो क्या डिसाइड करेंगे? आप शेयर करते नहीं हो, उनको पता है नहीं, तो वो कौन होते हैं डिसाइड करने वाले? इट इज यू, योर बॉडी इज नीडेड. आज आपके हस्बैंड को तकलीफ होती है तो वो आपसे पूछते हैं कि मुझे डॉक्टर को दिखाने जाना चाहिए कि नहीं? वो खुद डिसाइड करके चले जाते हैं ना. सो व्हाई इट इज ओनली मॉनिटरी कंडीशन व्हिच इज कंट्रोलिंग योर डिसीजन. वुमेन शुड स्टैंड अप टू टेक देयर ओन डिसीजन. मुझे सिर्फ यही नहीं सिनेरियो बताना था कि आप समझो है क्या ये प्रॉब्लम. इनफैक्ट मैं ये भी नोटिस करता हूँ, मैं जो समझता हूँ कि लोग, जो women have these issues, they are suffering in their bedrooms, but they do not have the courage to go to the doctor alone to talk about it also. You know, that is the worst part. कॉन्फिडेंस लेवल हमने कभी बढ़ नहीं दिया ना. जब वो बच्ची रहती है घर में, हमारा जो सोसाइटी है स्पेशली, मैं भी कलकत्ता बॉर्न हूँ, मैं अच्छी तरह जानती हूँ बचपन से लेके क्या होता है. कुछ भी होगा, मम्मी पापा या भाई है या बहन है बड़े, तो वो साथ जाएंगे. पेरेंटल गाइडेंस इज देयर. बड़े भी होते हैं तो वो कॉन्फिडेंस हमेशा कि पापा से पूछ के जाना है. पापा इज दैट मेल डोमिनेटी इज ऑलवेज देयर कि जो डिसाइड करेगा फाइनली कि क्या करना है क्या नहीं करना. चाहे वो अडल्ट हो गई है तो भी शादी होते ही वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर हो जाती है हस्बैंड के ऊपर. इवन कई जगह तो इन लॉज के ऊपर भी आ जाती है. सो वेयर इज दैट वुमेन्स ओन इंडिविजुअलिटी? उसको तो कोई राइट होता ही नहीं है बोलने का. तो उसने सीखा ही नहीं है बचपन से, तो वो अब खड़ी होके क्या बात करेंगी? Not only this, menstrual issue is a big taboo. हम घर में बात ही नहीं करते उसके बारे में. मेंस्ट्रुएशन होने से हम बोलते हैं किचन में नहीं जाना, भगवान को नहीं छूना, ये मत करना, वो नहीं करना. क्यों नहीं करना? There is no science behind it. टेक्निकली कुछ नहीं है उसके बारे में. एक जमाना होता था जब रेस्ट देने के लिए बोला जाता था, बट अगर वो बाहर जाके सारे काम कर सकती है तो किचन में क्यों नहीं जा सकती? किचन में स्टेप इन करने से नुकसान होता है. हम किस जमाने में जी रहे हैं? Actually, you are so right. This is such a big taboo, actually. Sanjay Bankaji, you want to ask a question? Please unmute yourself and ask. So, Minu ji, you are also a member of Calcutta Professional Association on Facebook.
So it is great to listen to you today. And really, you have touched the topic which, as a husband, I think, as a male, it is our prime duty that we should have been aware. So I myself was not aware about all the consequences and risks which are going to come on the menopause. In fact, I need to have a detailed discussion with my wife and understand what are the mood changes she's having. I'm so glad to hear this from you, Sanjay ji. I'm really happy to hear this. At least this is making a change. People are getting aware and they are taking it in a positive manner. Because as we see our wife and particularly the lockdown has really opened up our eyes. So I want to thank you very much. And whatever little I've understood, I will go through the video recording once again. Could you just touch on the topic of osteoporosis as to what care we should take? Because I've seen my mother going through osteoporosis and almost 3 operations. So what precaution I should take at this stage when my wife is 45, that she does not have to go through the same pain which my mother has gone through? कई चीजें हैं. पहले तो वजन घटाने बोलेगा अगर वो वजन ज्यादा है तो, क्योंकि वजन ज्यादा होगा तो इम्पैक्ट आपकी हड्डियों पे आता है. दूसरा, हड्डियों का हेल्थ हैज टू बी ऑप्टिमाइज्ड. उसके लिए कैल्शियम, विटामिन डी, फास्फोरस, मैग्नीशियम और कैल्शियम अच्छा होना चाहिए शरीर में. और साथ ही साथ प्रोटीन अच्छा होना चाहिए. प्रोटीन हमारे शरीर के बिल्डिंग ब्लॉक है. हर चीज की हेल्थ के लिए प्रोटीन चाहिए. तो कैल्शियम रिच खाना, मैं उम्मीद करती हूँ आप शायद वेजिटेरियन हैं, तो कैल्शियम रिच खाना दूध, दही, छेना, पनीर या सोयाबीन से मिलता है, या सोयाबीन से बने हुए टोफू या सोया मिल्क में मिलता है. इसके अलावा नट्स और सीड्स में मिलता है. सीड्स लाइक सेसमे सीड बहुत ही रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम है. तो कोशिश कीजिए कि उनके खाने में ज़्यादा से ज़्यादा इन सारी चीज़ों की भरपूर मात्रा में खाने में होइए. और डेली डाइट में खूब सारा हरी पत्तेदार सब्जियां हों, मतलब नियमित तौर पे वो हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं रोजाना. साथ में खूब सारी दालें, मतलब ऐसा नहीं, कई बार मैंने देखा है कि ज़्यादातर जो क्लाइंट आते हैं मेरे कैलकाटा वाले, उनका तो मतलब मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि दिन में हमारे 1 बार दाल बनती है. अगर सुबह खा लिया तो शाम को नहीं, शाम को खाया तो सुबह नहीं, और दाल चावल खाया तो सब्जी नहीं खाया. क्यों भाई? दाल चावल के साथ सब्जी खाना मना नहीं है. 5 servings ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इज नीडेड मिनिमम. 1 serving इज लाइक अ साइज ऑफ अ टेनिस बॉल, या एक छोटी कटोरी. तो 1 कटोरी दाल अगर खाए या 1 कटोरी सब्जी खाए तो कहाँ हुआ? कम से कम 2 से 3 कटोरी सब्जियां खाइए रोजाना, और 2 से 3 फ्रूट्स खाइए रोजाना. और इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि कम से कम 3 से 4 डिफरेंट कलरफुल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल खाइए रोज, जिससे तरह तरह के मिनरल विटामिन मिलेंगे. But for normal, sorry to interrupt you, but for a normal household, it becomes very difficult to plan and monitor the food habit in a scientific manner. Like you are a dietitian, you have a clear focus, but doesn't seem practical for us. कर रहे हैं ना कि अगर आपको पता होगा तो आप बिल्कुल फॉलो करोगे. ज्यादा भारी नहीं है. जब दाल और चावल खा रहे, साथ में 1 कटोरी सब्जी भी खाइए. एक सुझाव दें हम सर, मैडम सुझाव दें. संजय जी, एक काम करिए ना, जितनी सब्जी इन्होंने बताई ना, भुजिया मिला के खा लीजिए, देख ठीक से खाएंगे. देखिए कलकत्ते के जितने क्लाइंट आते हैं ना, उनके लिस्ट में भुजिया जरूर रहता है. Yeah, a lot of people, most of us are from Calcutta and mostly are from Marwadi background. So that is a challenge which we are facing today. Calcutta, right. I can totally relate to Thank what you are saying. This is a perennial. Thank you so. संजय जी, आप म्यूट कर लीजिए खुद को, आप खुद को म्यूट कर लीजिए. सपना जी, मैं आपको, आप प्लीज अनम्यूट कर लीजिए, अपना प्रश्न कर सकती हैं आप. सपना. Yeah, I just wanted to ask, what are the food which is rich in magnesium and phosphorus? For magnesium, you can have it via sunflower seed, pumpkin seeds, and lot of whole grains and pulses. जो हम हमारी दालें खाते हैं उसमें भी थोड़ा मिल जाएगा. जो आप pumpkin seed और sunflower seed good and rich source हैं. इसके अलावा आप जो होल ग्रेन्स लाइक रागी ले सकते हैं, बाजरा ले सकते हैं, व्हीट ले सकते हैं, या ब्राउन राइस या नॉर्मल जो हम राइस खाते हैं, सब में थोड़ा थोड़ा मिलता है, बशर्ते कि हम सबको सही नियमित मात्रा में रोजाना खाएं. सो मैग्नीशियम की अलग से सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है. अगर हमारी डाइट में सही अमाउंट में ये जितने फल, सब्जियां या दालें या नट्स या सीड्स मैं तब से बता रही हूँ, उनको रोजाना डालिए अपनी डाइट में. देखिए मैग्नीशियम की कमी नहीं होती, क्योंकि मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में इन खाने में मिलता है. रही बात फास्फोरस की, फास्फोरस आपको सारी तरह की बीन्स में मिलेगा. फास्फोरस आपको इन जो नट्स एंड सीड्स में बोल रही हूँ, इनमें भी मिल जाएगा. तो इसके लिए भी अलग से सप्लीमेंटेशन नहीं चाहिए. सिर्फ कोशिश ये कीजिए कि आपके खाने में प्रोटीन
1/4 प्लेट हो, चाहे वो डेयरी से हो चाहे वो दालों से हो, वो जरूर हो रोजाना। रोजाना मतलब वो आपके लंच में भी हो, वो आपके डिनर में भी हो। ऐसा नहीं कि सुबह खाया तो रात में नहीं खानी। जब वो प्लेट है तो प्लेट का 1/4 मेरा प्रोटीन होना है, ये ध्यान रखिए। और दूसरा चौथाई मतलब दूसरी चौथाई हिस्सा जो है वो आपका ग्रेन्स होगा, चाहे वो राइस हो, व्हीट हो, रागी है, बाजरा है या ज्वार है, वो आपका एक ग्रेन का हिस्सा है। और बाकी आधी प्लेट में सब्जियां और फल हैं। तो वो आपको ऐड करना है कि आप अपनी दिन की प्लेट कैसे सजाती हैं। मैंने एकदम बहुत सिंपल एंड साधारण तरीके से बताया। अपनी प्लेट को 4 हिस्से में बांटिए और उस हिसाब से खाना खाइए। और प्लेट की साइज थाली नहीं, मैंने प्लेट बोला है, ये ध्यान रखिएगा। थाली नहीं बोली है, नॉट मारवाड़ी थाली। जो अभी बुफे की जो प्लेट होती है ना 8 इंची वाली, बस उससे ऊपर नहीं। What about flaxseed? Flaxseed is a good rich source of omega-3 fatty acids. 1 चम्मच रोजाना खा सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल में इंप्रूवमेंट होगा, फाइबर इंटेक भी बढ़ेगा। So can we grind it and have it with water? Ideally you should have flaxseed by grinding, because chew तो आधे लोग करते ही नहीं, हम तो चबाते नहीं, हम तो गिरते हैं, खाना निगलते हैं। Chewing कितने लोग करते हैं? So it is best we should grind it and have it. हमें रेवेन्यू जनरेट करने में ये कौन है भाई, कौन है? ये है, ये भूषण सुदानी जी। परेशान है थोड़ा सा, वो अनम्यूट करते रहते हैं उसको। ओके, हाँ बोलिए। तो फ्लैक्सीड आप ले सकते हैं रोजाना 1 चम्मच। आइडियली फ्लैक्सीड को ग्राइंड करके खाइए, सो दैट कि वो उसके प्रॉपर बेनिफिट आपके शरीर में आ सकते हैं। आप पानी के साथ ले सकती हैं, आप रोटी के आटे में मिला के ले सकती हैं, सब्जी में भी डाल के ले सकती हैं। थैंक यू सपना जी। कविता जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी सारे क्वेश्चन चैट बॉक्स में मैं देख रहा था, तो आप प्लीज पूछिए उनको। What if calcium is not absorbed by body? Why will calcium will not get absorbed by your body? Try to have calcium doses wherein there is some bit of magnesium is also there and little bit of vitamin D3 is also there. Okay, next question. How do we maintain, sorry. हाँ जी बोलिए। How do we maintain the balance of electrolytes? बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के लिए आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी। नॉर्मली आपका बॉडी बैलेंस रहता है। इलेक्ट्रोलाइट अगर ज्यादा कम बेसी हो गए तो आप घर में बैठने लायक कंडीशन में नहीं रहोगे, आईसीयू जाना होगा। सो नॉर्मली अगर आप बहुत ज्यादा स्वेट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा धूप में जहाँ पसीना बहुत निकल रहा है, तब यस इलेक्ट्रोलाइट लॉस होते हैं हमारे बॉडी के। उसको रिप्लेनिश करने के लिए रिहाइड्रेटर्स बोलते हैं हम। जैसे कि आपने साधारणतः लोग ग्लूकॉन डी पीते हैं, ग्लूकोज, उसके अंदर थोड़ी सी नींबू का रस और डाल दीजिए और उसको पीजिए आराम से, वो कर सकते हैं। अदरवाइज बहुत सारे रिहाइड्रेशन के टैबलेट्स, ड्रिंक्स मिलते हैं, लाइक एक फासन अप, स्पोर्ट्स पर्सन लोग बहुत पीते हैं अभी बंगाल में और इंडिया में भी मैंने और कई जगह देखा है कि दे आर यूजिंग इट एज अ इलेक्ट्रोलाइट सप्लीमेंट। सो दैट इज वेरी इजी। एक छोटी टैबलेट आती है, बस टैबलेट को एक गिलास पानी में घोला और पी जाए। दैट विल इमीडिएटली रिहाइड्रेट योरसेल्फ टू मेंटेन योर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। अलग से नमक चीनी किसी चीज के इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। What are the vitamins to increase the elasticity of the body? And is evening sunlight between 5 to 6 good? It has no impact. Evening sunlight has no impact in creating your vitamin D. उसके कोई ऐसे फायदे नहीं है। To increase the elasticity of your body, your diet should be rich. ये पहले भी बोल चुकी हूँ, फिर रिपीट कर रही हूँ। Diet should be rich in vitamin A, vitamin E, vitamin C, and protein. इन सबसे ए एंड ई स्किन की क्वालिटी बढ़ाते हैं। सी हमेशा हमें चाहिए क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट्स है। हमारे शरीर पे जो इन्फ्लेमेशन होता है, स्किन पे जो इन्फ्लेमेटरी स्ट्रेस होता है, उसको रिड्यूस करता है। इसके साथ साथ एक चीज और है, जब चूंकि इस बार डायरेक्ट स्किन के लिए पूछ रहे हैं तो मैं बोलूंगी डाइट में सेलेनियम की क्वांटिटी भी होनी चाहिए। तो सेलेनियम के लिए वेजिटेरियन सोर्सेज में सिवाय ब्राजील नट के और कोई अच्छा सोर्स है नहीं खास। थोड़ा बहुत मशरूम और बहुत थोड़ा सा स्पिनच में भी मिलता है, पालक में। तो सेलेनियम आप एक मल्टी विटामिन लीजिए जिसके अंदर सेलेनियम एडिक्वेट अमाउंट में हो। सो अपार्ट फ्रॉम दिस डाइट, have one multivitamin containing good amount of selenium. Selenium will improve your skin quality. Now there are questions coming on how to reduce weight. That my weight is stubborn. How do I reduce it? Book a personal consultation so that we can discuss what are the hindrances and obstruction in your weight loss journey.
अच्छा मीनू जी, आपसे एक गुजारिश करेंगे, आप अपना परिचय यानी कि कोई कांटेक्ट या डिटेल्स दे दीजिए, क्योंकि लॉट ऑफ पीपल आर आस्किंग हाउ टू कनेक्ट विद यू. I will type here in the chat box हाँ my प्लीज. contact number. They can connect me over WhatsApp. या वैसे मीनू जी हमारे साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ही हैं, वो शांति से बैठी रहती हैं और ग्रुप में देखती रहती है, कुछ रिएक्ट करती नहीं है. So she is a part of our group that we have for the talk show group. She is very much there. जतिन जी, I will share this presentation की फाइल, तो आप ग्रुप मेंबर्स और Yes. जिसको भी चाहिए कर दीजिए, उसमें उनको मेरा कांटेक्ट डिटेल भी मिल जाएगा. I think that will be a wonderful thing. You'll but email भी आप दे दीजिए अपना. There are a lot of people asking for email. Please advise urine leak and loose muscles also. How to adjust that? वो तो शायद adjust कर चुके हैं. That has been addressed. Yes. पर क्या होता है, लोग फिर भी सुनना चाहते हैं, क्योंकि जब दूसरे क्वेश्चन पूछते ज्यादातर लोग ध्यान नहीं देते. They wait for their turn to come. So Yeah, I know. to हाँ address बोलिए. issues, to tighten the muscle, आपको कैजुअल एक्सरसाइज करनी चाहिए जिसमें हमारी पेल्विक मसल एंगेज होती है. मसल लूज हो जाती है उम्र के साथ, प्लस मेनोपॉजल फेज के साथ. तब हमारे जो यूरेथ्रा है वो डाउन हो जाता है, जिससे कि फ्रीक्वेंट यूरिनरी अर्जेंसी होती है. तो कैजुअल एक्सरसाइज विल हेल्प यू टू इम्प्रूव एंड टोन अप योर पेल्विक मसल्स. वो बहुत आसान है, आप अभी बैठे बैठे भी कर सकते हैं. जस्ट आपको सिर्फ मेंटली अपराइट पोजीशन स्ट्रेट होके बैठिए और सिर्फ सोचिए कि आपको बहुत जोर से यूरिन आ रही है, मतलब पेशाब आ रहा है, बट आप अभी कर नहीं सकती, आपको पेशाब रोकना है. सिर्फ ये जो थॉट प्रोसेस है, रोकना है, दैट इज इम्पोर्टेंट एनफ एंड इट इज गुड एनफ टू होल्ड योर पेल्विक मसल्स टाइटली. इसको 10-12 बार जरूर कीजिए, कम से कम दिन में 3 बार. A repetition of 10 to 12 times, 3 times a day will help you to improve your pelvic muscles. Excellent. चित्रा जी, मैं आप प्लीज पूछ लीजिए अपना आंसर. आपको जो पूछना है आप अनम्यूट करके पूछिए अपने आप. अनम्यूट कर लीजिए खुद को. मिसेस निवेटिया, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा. एक्चुअली आपने कर लिया, बहुत अच्छा. पूछिए. मैम, कैन यू लिसन मी? Yes, yes, I'm listening, please. नमस्ते. अच्छा, आई एम 65. मेरे को ये पूछना था, मेनोपॉज में मेरा वजन अचानक से 12-13 kg बढ़ गया है, पर अब जो भी डाइटिशियन है, जहाँ भी मैं नेचुरोपैथी में भी जाती हूँ तो कम नहीं हो रहा है. बोलते मेटाबॉलिज्म सिस्टम एकदम खराब हो चुका है, तो आपका कम नहीं होगा. तो अब इसको ठीक करने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ? चित्रा जी, आपसे पूछना चाहूंगी, जब आप किसी डाइटिशियन या नेचुरोपैथ के पास जाते हो, जनरल प्रॉब्लम क्या होती है, क्यों वजन लूज नहीं होता? क्योंकि हम उस डाइट को थोड़े दिन के लिए फिक्स तौर पे देखते हैं कि 1 महीने की डाइट है, मुझे ये डाइट फॉलो करनी है, इसके बाद मैं वापस आ जाऊंगी पुराने डाइट पे. नहीं, मेरा डाइट पुराना नहीं चल रहा है, वापस एकदम डाइट पूरा कंट्रोल है. डाइट कंट्रोल. एक्सरसाइज करती हैं आप? एक्सरसाइज बढ़ाइए. एक्सरसाइज में डेली 1 घंटा कर रही हूँ. कितने घंटे बैठी रहती हैं? ज्यादातर. तब फिर आप खुद अपना बैलेंस बता रही हैं. एक एक्सरसाइज इस उम्र में नहीं चलेगी, हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत कम हो गया है. तो खाना बहुत ही चेक करके, वो जो चीट मील होता है उसको ध्यान रखिएगा. वो हफ्ते में सिर्फ 1 दिन 1 मील ही चीट मील ले सकता है आपका शरीर अभी. और इससे ज्यादा डिटेल आपको बता दूं, एक्सरसाइज बढ़ानी पड़ेगी. वॉक बढ़ाइए. 1 घंटा काफी नहीं, और कोशिश कीजिए घर के अंदर भी है तो ज्यादा से ज्यादा वक्त घूमते रहिए, मूव करते रहिए, बैठे मत रहिए. इनफैक्ट 1 घंटे से ज्यादा लगातार एक जगह बैठना भी हानिकारक है. ओके जी, थैंक यू. चित्रा जी, एक आपसे सुझाव था, एक सुझाव है आपके लिए खास. हाँ बोलिए. आप बहुत अच्छा गाना गाती हैं, इसलिए थोड़ा खड़े रह के गाना गाए, आप यू विल एंजॉय लूजिंग योर वेट फास्ट. थैंक यू. चित्रा जी, Thank you so much. तकलीफें हैं, we can always connect and I can discuss and suggest you how to go about it so that permanent change हो लाइफस्टाइल का, टेम्पररी फेज ना हो. बट हाँ, जो वजन आप घटा सकते थे 60 में, उसको घटाने में थोड़ी तकलीफ आती है, मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है. ओके, ठीक है, मैं कांटेक्ट करूंगी. अविशी जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज. अविशी जी, आप अनम्यूट कर लीजिए. गुड. आप अनम्यूट कर लीजिए. हाँ, कर लीजिए. कर दिया. अविशी जी, आप पूछिए ना. हेलो. हाँ जी. यस मैम, आई वांट. हाँ, हम पूछना चाहते थे मैम, सोयाबीन सही अच्छा है इस एज के लिए? आई एम 43 ना. इज सोयाबीन गुड? Soybean in terms of fermented tofu is very good. अगर आपको थायराइड डिसऑर्डर या कैन वी टेक सोया चंक्स? अगर आपको थायराइड या हाशिमोटो डिसऑर्डर नहीं है, then yes you can have soya chunks, you can have soya bean also, and you can have tofu also.
Even soya milk is also okay. Okay. Thank you. Thank you. Thank मोनिका you. जी आप भी पूछ सकते हैं. मोनिका जी आप पूछ सकते हैं. मोनिका जी आपका हैंड रेज्ड है, आप पूछिए अपना म्यूट करके. Anyways, एक क्वेश्चन आया था बीच पे, मैं देख रहा था. The question that has come up is what about menopause? तो men को भी थोड़ा एक पार्ट होना चाहिए ना. Men को भी तो pause होता होगा. बिल्कुल, that's a pause in their behavioral condition and expectation from their wife. When the wife is going through menopause, men के लिए उनकी expectation level में pause लगाना चाहिए. Okay, so that way. Otherwise, there is no hormonal change or something like this happening on men. No, men don't go through this hormonal change. Usually the testosterone, which is the one which impacts men, but that impacts much later in your life, around post 60, late 60s or 70s में आता है, unlike women. Okay, तो हमारा सिर्फ एक ही काम है कि we have to ensure that we support the women who have been supporting us all the time, and please understand their mood swings as a phase, not a disease. And ये जो है ये temporary है. Continue for 7 to 9 years also, which may continue for 7 to 9 years also. So ठीक है, we will all face it. कविता जी कोई question रह गया unanswered? कविता जी any questions? No, there are no other questions. They've all been answered. टॉपिक क्यों उठाया था? बिकॉज लास्ट 1 साल से मैं देख रही थी कई women जिन लोग मेरे से कंसल्ट करती थी, उनमें से कईयों के प्रॉब्लम थे कि हमारे मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम होने लगे बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज दे डोंट हस्बैंड डोंट अंडरस्टैंड, दे डोंट वांट टू सपोर्ट. अब जब समझते नहीं और women दे डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन दिस, बिकॉज उनको भी आधी से ज्यादा चीजें पता नहीं क्यों हो रहा उनके साथ, एंड दैट हैज स्टार्टेड इम्पैक्टिंग देयर फैमिली लाइफ. दैट्स समथिंग व्हिच एक्चुअली मुझे हिंट किया कि नहीं, आई नीड टू डिस्कस दिस with whatever forum I can interact with people. ये मैसेज स्प्रेड करना बहुत जरूरी है. Excellent. और कोई questions नहीं है आपका, कोई last closing phase, because we are already 1 hour and 40 minutes into the session. Would you like to give a closing line to this particular topic, which is such a topic which has been under the carpet for such a long time? For me? Yes, we want to hear from you, one closing line. And by the way, if people who want to join the WhatsApp groups, we have shared the links. Please feel free to join the group. Please come forward and participate in further and future sessions that we are going to have. Tomorrow we have Ma and Pa on thing, so please come back again. In the meantime, the number that I'm sharing is mine, 98300292224, 98300. You can send me a message. Will add you in the group. And Meenu ji has promised that she's going to share the presentation that she shared, so that I can pass it on to you personally, ताकि आप भी समझें और आप भी आगे पहुंचाए लोगों तक. Meenu ji, a closing line from you. My only message to women and all males also who are attending this show: women, take charge of your health, and men, please let them do this. They have their own right on their body. Okay, before that, they are not your pets. Please let them lead their life and treat them equal respectfully. Thank you so much. I would like to say I am happy to take any more sessions in future if you think it is worth. Of course, it was very, because आप जिस तरह candidly बोलते हैं ना, लगता है it is the last authority and last word. Sapna ji, again you have raised your hand. You want to ask? You can unmute yourself and ask. Yeah, you said morning sun is good. So is it 6 to 8 time will good? Yes, sunrise के बाद जो फर्स्ट 2 घंटे होते हैं वो अच्छा है. उसके बाद सन की इंटेंसिटी हाई हो जाती है, वो स्किन के लिए हार्मफुल है, स्किन कैंसर होने का डर होता है. तो जब सनरेज आपको लगे कि ज्यादा हो गई है, ज्यादा हो गया, तब मत, तब आ जाएगी. संगीता जी आपको पूछना है. संगीता जी आपको पूछना है, प्लीज आप अनम्यूट करके पूछिए. Ma'am, it was an amazing session. I wanted to ask you that B12 deficiency, can you suggest some foods for it? The natural foods? In diet, unfortunately, there is no source of B12. For non-vegetarian, yes, it is there in plenty of amount in all animal food, like eggs are rich source of B12. It is there in meat, it is there in chicken and fish.
वेजिटेरियन डाइट में अनफॉर्चुनेटली B12 नहीं है, इसीलिए हमें रेगुलर सप्लीमेंट करने की जरूरत है और ताउम्र करने की जरूरत है। ये नहीं कि आज किया और 2 साल बाद छोड़ दिया। Okay, can you suggest any good B12 supplement? How old are you? 40s. Sorry? In 40s. In 40s, you can have Bio D3 strong. Okay. Position wherein you get your calcium and B12 both. तो आपको कैल्शियम के लिए अलग से नहीं खाना होगा, इसके अंदर मैग्नीशियम भी थोड़ा है और विटामिन के भी है, तो आपकी हड्डियों का हेल्थ भी अच्छा रहेगा, प्लस आपकी B12 की डेफिशिएंसी भी ठीक हो जाएगी। तो एक कैप्सूल So 1 tablet daily. Yeah, it's a capsule. So 1 capsule daily. 2 महीने खाइए, फिर 1 महीने बंद कर दीजिए, फिर रिपीट कीजिएगा 2 महीने। Okay. Thank you so much. Thank you, Sagita ji. आप म्यूट कर दीजिए खुद को. Okay, we have one more hand raised. We'll take the last. Seema ji hai. Seema ji, you can ask a question, please. It's a wonderful session, ma'am. I have just one question regarding dairy products. Most of the nutritionists these days say avoid dairy products, whereas you are emphasizing on taking it. Yes. So how to go about it? Okay. When we say dairy product, क्यों nutritionists मना करते हैं इसको समझिए। अभी जो दूध मिलता है ज्यादातर वो हार्मोन इंजेक्टेड होता है, ऑक्सीटोसिन इंजेक्ट किया हुआ रहता है, which is harmful. It's a growth hormone जो अननेचुरली हमें नहीं चाहिए। बट वेजिटेरियंस के पास ऑप्शन बहुत कम है। दूध फिर भी मैं बोलूंगी कि आप पीजिए, जरूरत से ज्यादा मत पीजिए, लेकिन दूध से ज्यादा कहीं ज्यादा जरूरत है डेयरी प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ दही। दही इज अ प्रोबायोटिक, इट इज एक्सेलेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन, कैल्शियम एंड गट हेल्थ। तो दही दूध अगर आपको तकलीफ देता है, दूध कम कर दीजिए या बंद कर दीजिए, बट उसको रिप्लेस कीजिए दही से। एनी वुमेन इन 40s प्लीज इंश्योर आधा लीटर दूध या दूध से बना हुआ सामान रोजाना खाइए, एंड स्पेशली इफ यू आर वेजिटेरियन, बिकॉज आपके पास और उपाय नहीं है। और अभी मैंने जाना है कलकत्ता में देयर आर गौशालाएं जहाँ की हार्मोन फ्री दूध भी मिलता है। सो बीइंग कैलकटन यू शुड बी फीलिंग ब्लेस्ड। हार्मोन फ्री मिल्क मिलता है, तब रुकिए मत, उसको बिल्कुल इस्तेमाल कीजिए, सोर्स कीजिए, और कोशिश कीजिए कि ये जो काऊ का मिल्क जो है इसको फुल क्रीम ना लें, इसको अच्छी तरह उबालिए, इसका क्रीम हटाइए और उसके बाद लीजिए। और जब उबालते हैं उसमें दूध में पानी मिला के उबालिए, बिकॉज फैट हाई होता है विच इज नॉट एडवाइजेबल। कई लोगों की शिकायत होती है कि दूध बहुत पतला हो जाता है, फिर क्या फायदा? दूध के सारे फायदे उसमें रहेंगे सिवाय फैट का। फैट हमें हटाना है जो हमें नहीं चाहिए। सो आई विल स्टिल रेकमेंड, प्लीज एंश्योर दैट अगर दूध आपको ट्रबल करता है, प्लीज गो विथ योगर्ट यानी दही। दही रेगुलर लीजिए, हो सके 2-3 बार लीजिए, चाहे दही, रायता, छाछ, बटर मिल्क, जिस फॉर्म में पसंद है लीजिए, बट लीजिए। अदरवाइज आप प्रोटीन बैलेंस नहीं कर पाओगे, एंड प्रोटीन कम होने से बॉडी ऐसे ही डिटोरिएट होने लग जाएगी, हीलिंग पावर कम हो जाता है हमारी बॉडी का। Thank you so much. Thank you very much. I think since all questions are answered and we have done the session on one, you have any question, Kavita ji? There's just one question that has just come up. It's like, do you have to bear the hot flush during the menopause periods? Yes, dear. Unfortunately, yes, we have to bear the hot flushes. अगर बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, बिल्कुल unbearable है और long time से, you can discuss with your gynae for HRT if she can suggest. But we have to bear this. Thank you so much. Thank you all of you, and Meenu ji, thank you once again for being here. Thank you so much. Thank you, everybody. And Jitin ji, thank you so much for providing me this platform to reach out to you all. And I would like to ask everybody and request everybody, I am going to post some of the pictures of today's this after your permission on my Facebook post also, so that people can come to know more about your platform. You are doing such excellent work of information and providing this platform for people to increase awareness. I would like and appreciate if people can like the page and follow the Facebook page for further informations. Excellent. Thank you so much. Thank you, Kavita. Thank you, Ravi. Thank you, Seema ji. Thank you for being there. Thank you so much. Ravi, we can log off. Thank you. Bye-bye. Stay safe. Good night. Bye. Thank you, everybody.